तो बेसिक मैथ्स की बात कर रहा हूँ कि आपको मैथ्स किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आप कैसे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर जीपीएससी की बात करूँ तो आपको मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन पता है कि 50 to 60 क्वेश्चन आते हैं। और अगर सीसेट की बात करूँ तो सीसेट में आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की बात करूँ तो कॉम्परिजन दिया होता है, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स की है, तो मैं पहला टॉपिक लिख रहा हूँ आपके सामने। लैंग्वेज में गुजराती हिंदी चालશે ને? ओके, इंग्लिश गुजराती है ना। જો કેલ્ક્યુલેશન ને ફાસ્ટ કરવા માટે તમને 3-4 વસ્તુ બેઝિક આવડવી જોઈએ। પહેલી વસ્તુ છે કોઈ પણ સંખ્યાનો વર્ગ શું હોય છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ। સેકન્ડ વસ્તુની ચર્ચા કરું કે સર સેકન્ડ વસ્તુ શું છે, તો વર્ગમૂળની વાત કરું, જેને આપણે કહીએ સ્ક્વેર રૂટ, બરાબર। જ્યારે તમને એક્ઝામમાં સાદુરૂપ પૂછ્યું હશે સિમ્પ્લિફિકેશન, તો સિમ્પ્લિફિકેશનમાં બેઝિક વસ્તુ શું હશે, યા તો વર્ગ પૂછેલું હશે યા વર્ગમૂળ હશે, બરાબર। ઘનની વાત કરું જેને આપણે કહીએ ક્યુબ, એઝ ઇટ ઇઝ ઘનમૂળ જેને આપણે કહીએ ક્યુબ રૂટ। અને એક બેઝિક વસ્તુ મને તમારા બધાથી જોઈએ કે જે ઘડિયા હોય છે, બરાબર, જેને આપણે ટેબલ કહીએ। મને ખબર છે કે કોઈને યાદ નહીં હોય, બહુ ઓછા લોકો હશે જેમને ઘડિયા યાદ હશે। તો 20 સુધી ઘડિયા યાદ કરવાના છે। કેટલા સુધી યાદ કરવાના છે? 20 સુધી। હવે એનું ક્યાં કામ આવશે, કઈ રીતે આપણે યુઝ કરશું, એની બધી ચર્ચા કરશું। તો પહેલી તો આ 5 વસ્તુ સમજી લો કે સર વર્ગ આપેલું હોય, વર્ગમૂળ આપેલું હોય, ઘન આપેલું હોય અને ઘનમૂળ। તો કઈ રીતે તમે વિથિન 10 સેકન્ડ કે 15 સેકન્ડ में કોઈ પણ સંખ્યાનું તમે ઘન ફાઇન્ડ કરી શકો છો, કોઈ પણ સંખ્યાનું તમે વર્ગ ફાઇન્ડ કરી શકો છો અને કોઈ પણ સંખ્યાનું આપણે વર્ગમૂળ ફાઇન્ડ કરશું। કઈ રીતે એ જુઓ। તો હેડિંગમાં લખો કે વર્ગ સ્ક્વેર। अच्छा, વર્ગનું મતલબ શું હોય છે, ઘાત કેટલી હોય છે। જેમ કે મેં લખ્યું છે 5 નું વર્ગ, તો આને કહીએ પાવર। પાવર ને શું કહીશું આપણે? ઘાત, બરાબર। તો 5 ની પાવર 2 હશે તો આનો જવાબ હોય છે 25, બરાબર છે। આને હું પરફેક્ટ સ્ક્વેર કહી શકું છું 25 ને। પૂર્ણ વર્ગ છે આ પરફેક્ટ સ્ક્વેર। માની લો કે મેં 16 લખ્યું છે, 16 કોઈ સંખ્યાનું વર્ગ છે, 4 નું વર્ગ દેખાય છે ને, તો આને કહી શકું છું કે જે 16 નંબર છે 16 ઇઝ અ પરફેક્ટ સ્ક્વેર। 16 શું છે? પરફેક્ટ સ્ક્વેર। જો મેં 25 લખ્યું છે તો 25 બી શું છે? પરફેક્ટ સ્ક્વેર, પૂર્ણ વર્ગ, બરાબર। હવે સર માની લો કે મને 100 સુધી કોઈ પણ સંખ્યાનું ફાઇન્ડ કરવાનું હોય, કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરશું? વર્ગ। તો હું બેઝ લઈ લઉં છું 100। એક નંબર છે 98 નું વર્ગ, અહીંયા હું નંબર લઉં છું 92 નું વર્ગ, 92 નું વર્ગ, બરાબર। હવે મોસ્ટલી તમને વર્ગ યાદ હશે તો મે બી 20 સુધી કે 30 સુધી, બરાબર। પણ જો અહીંયા સંખ્યાની વાત કરું તો તમને દેખાય છે કે 98, 92, 98 या 92। તો આ જે સંખ્યા હશે આનું વર્ગ તમે 10 સેકન્ડની અંદર કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો છો, પહેલી એ જુઓ। આ જે નંબર દેખાય છે એ 100 ના નજીકમાં છે। જો હું કમ્પેર કરું 100 થી, તો 100 થી કમ્પેર કરું તો 100 ના નજીકમાં દેખાય છે, યસ યા નો, બરાબર। 100 ના નજીકમાં છે। તો પહેલી વસ્તુ તો કે સર જે બેઝ લીધું છે ને તમે 100, એના નજીકમાં જે નંબર હશે, જેમ કે 98, 92, 88, 85, 73, 77, બરાબર। તો આ બધા નંબર શું હશે? 100 ના નજીકમાં હશે, બરાબર। તો માની લો કે જો મને 98 નું વર્ગ ફાઇન્ડ કરવાનું હશે तो 98 ने आनाથી कंपेयर करवाનું છે 100 वडे, बराबर। जब आप इसको कंपेयर करोगे 100 से तो आपको डिफरेंस कितने का दिखेगा? 2 का। और 2 का स्क्वायर होता है, आपको पता है कि सर 4। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 98 को आप जब कंपेयर करोगे 100 से, तो जब आप 100 से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि सर डिफरेंस कितने का है? 2 का। और आपको इस 2 का स्क्वायर लेना है, जो सभी को याद होगा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब मैं इस 4 को इस तरीके से लिख रहा हूं, मैंने इसको लिख लिया 04। मतलब मैंने यहां पे 2 अंक यूज किए, 2 डिजिट यूज किए। कितने डिजिट यूज किए? 2 डिजिट।
ठीक है। अगर मान लीजिए कि मुझे 4 का स्क्वायर लिखना है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है, इसमें मुझे ना तो 0 लगाने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि मुझे ये 2 डिजिट में ऑलरेडी दिख रहा है। लेकिन मुझे 2 का स्क्वायर 4 लिखना था, सिंगल डिजिट में था, तो इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 0 लगा दिया। यहां तक क्लियर, ठीक है। अच्छा, जितना डिफरेंस है आपको इसमें से ये नंबर माइनस करना था, तो ये आप ओरली कर सकते हो। 98 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 96। पहले समझ लीजिए फिर लिख लेना कि क्या है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी सॉल्व करने के लिए दूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सर 98 को कंपेयर करूं तो 2 का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन मैंने लिखा है 0 4, ठीक है। जो डिफरेंस है वही आपको माइनस करना है 98 में से। जब आप 98 में से ये 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 96। और जैसे फेविकॉल काम करता है चिपकाने का, वैसे के वैसे आपको ये 2 नंबर इसके पीछे चिपका देने हैं। ये आपका जवाब है 9604। आपका आंसर क्या होगा 9604। क्लियर हो। 98 का वर्ग दिख रहा था, नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो आप खुद भी जब इसका सॉल्यूशन करोगे ना, तो आपको भी 5 सेकंड से कम टाइम में आप ये लिख सकते हो कि सर इसका जवाब क्या आएगा 9604। एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि 92 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। अब जब आप कंपेयर करोगे 100 से, तो आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो डिफरेंस कितने का दिखेगा 8 का। और 8 का स्क्वायर होता है, आपको सभी को पता है कि सर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो मिनिमम 10 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं, ठीक है। रिक्वायरमेंट तो आपको 30 तक याद होने चाहिए, लेकिन मिनिमम जब आप ये बेसिक कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको 10 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अच्छा, सेकंड काम क्या करना था कि सर जितना डिफरेंस है वो नंबर इसमें से माइनस करना था आपको, ठीक है। जब इसको आप माइनस करते हो तो ये होता है 84, और 84 के बाद आपको ये 2 नंबर इसके पीछे लगा देने हैं, तो आपका जवाब आ जाएगा 8464। क्या जवाब आएगा 8464। यहां तक क्लियर हो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं कि 100 के आसपास नंबर होगा तो आप ये कर सकते हो। अभी मैंने आपको ये नहीं बोला कि 25 का स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करना है, क्योंकि जब आप 100 से कंपेयर करोगे 25 का, तो 75 का डिफरेंस आएगा। तो आपको याद ही नहीं है 75 का स्क्वायर, तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। चीजें क्लियर है। एक और मैं नंबर ले रहा हूं। मान लीजिए कि सर इस बार 87 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। अब आपको क्या तकलीफ पड़ेगी, जब आप 100 से कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस कितना दिखेगा 13 का। क्लियर हो। तो यहां पे आपको 13 का स्क्वायर याद होना चाहिए, यस या नो। क्लियर हो। और 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है 16 और 9। मैंने आपको बोला कि आपको लेना तो 2 डिजिट में, जैसे 2 का स्क्वायर था 4, आपने लिया 04। जैसे 8 का स्क्वायर होता है 64, वो ऑलरेडी 2 डिजिट में था, तो मैंने 2 डिजिट लिखा। लेकिन जब आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको क्या दिखेगा कि जो आंसर आ रहा है वो 3 डिजिट में आ रहा है, और आपको लेनी कितनी डिजिट है 2 डिजिट। तो आपको 1 डिजिट एक्स्ट्रा दिख रही है, ठीक है। मैंने इसको साइड में लिख लिया। अब जितना डिफरेंस था वही नंबर मैंने इसमें से माइनस कर दिया। तो आप जब माइनस करोगे तो 7 में से 3 जाएगा 4, और 8 में से 1 जाएगा तो 7। अगर ये 2 डिजिट में होता तो मैं उठा के पीछे रख देता, यस या नो। 2 डिजिट में होता तो मैं उठा के पीछे इसके रख देता, लेकिन मुझे ये 3 डिजिट दिख रहे हैं, तो सर ये जो एक एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये आप इसको दे दो 74 को। जो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिख रहा है वो आप किसको दे दोगे 74 को। और आप जब 74 में एक ऐड करोगे तो आपका जवाब क्या होगा 75। और अब आप इसको पीछे एज इट इज लिख सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 7569। तो 7569 आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 87 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आप लिख लीजिए जो जो चीज मैंने कराई है, और फिर मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पे अगर आपको कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो। इवन स्क्वायर ही नहीं, मैं क्यूब भी आपको इसी तरीके से बताऊंगा, और क्यूब भी नहीं, मैं आपको परसेंटेज भी इसी तरीके से बताऊंगा कि 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर परसेंटेज का भी क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो।
लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ी बेसिक चीजें वो आपको करनी होगी। ठीक है, ये चीजें लिख लो, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। રેકોર્ડમાં ડાઉટ પછી કોઈનું હશે તો કઈ રીતે પૂછીશું? સરે કીધું તું રેકોર્ડ કરવાનું. तो 100 तक या 100 के आसपास कोई नंबर है, अगर उसका आपको स्क्वायर निकालना है तो आप इसी तरीके से निकालोगे। ये आपका 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। अब मैं कुछ एक दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये लिख लिया हो तो। अब मुझे 96 का स्क्वायर क्या होगा ये आप बताइए। जब आप इसको 100 से कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस दिख रहा है 4 का। अब मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीजें लिख रहा हूं, रामायण कर रहा हूं कि आपको 4 का स्क्वायर 16 लिखना है, लेकिन जब आप खुद ये चीजें सॉल्व करोगे ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको माइंड में रखना है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। और 96 में से अगर मैं 4 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आएगा 92 और पीछे लगा दो 16, ये आपका आंसर। ठीक है, जितना हो सकेगा मैथ्स और रीजनिंग में आपको इस पेन का यूज नहीं करना। जहां तक लगता है कि हाँ मुझे पता है कि 3 इंटू 3 9 होता है तो मैं लिखूंगा नहीं, मुझे पता है कि 2 + 2 4 होता है तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं माइंड में कैलकुलेट करूंगा। तो जहां आपको लगता है कि आप माइंड से चीजों को कर सकते हो वहां आप आपकी जो पावर है उसको यूज कीजिए, और जहां लगता है कि सर थोड़ी टिपिकल कैलकुलेशन हो रही है तो वहां आप क्या कर लो, लिख लो। इसको मैं रिपीट कर लेता हूं। आप जब डिफरेंस देखोगे तो कितने का है 4 का, और 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। आपको क्या करना था, यही नंबर इसमें से माइनस करना था। जब आप 96 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 92, और ये नंबर आप इसके पीछे लगा दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9216, ठीक है। एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं। मान लीजिए इस बार मुझे 86 का स्क्वायर निकालना है, तो 86 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है 14 का, और 14 का स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 196। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। सर तकलीफ है, क्या तकलीफ है कि आपने बोला है कि 2 डिजिट में लेना है, लेकिन फिर से मुझे कितनी डिजिट दिख रही है 3 डिजिट। तो आप इसको कैसे बाइफरकेट करोगे, ठीक है। तो सर 2 डिजिट क्या है, 96 को मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। अगर 86 में से अगर मैं 14 को माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 72, और इस 72 में ये एक मैं इसको दे दूंगा, तो 72 में एक ऐड कर दोगे तो आपका आंसर क्या होगा 73, और पीछे क्या रहेगा 96। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब आते, मान लीजिए सर कि 20 तक याद है तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन कोई लड़का मुझे आके बोलता है कि 55 का स्क्वायर क्या है, या फिर मुझे बोलता है कि सर 47 का स्क्वायर क्या है। तो जब अगर मैं इसको 100 से कंपेयर करूंगा ना तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, और इतना ज्यादा आएगा कि आपको उसके स्क्वायर याद नहीं है। तो इस बार आपको जो बेस लेना है, इस बार आप बेस क्या लोगे तो 50 का, ठीक है। इस बार नंबर आपको 50 के आसपास दिखेगा, किसके आसपास दिखेगा 50 के आसपास, ठीक है। अच्छा 50 के आसपास दिखेगा तो सेम कॉन्सेप्ट, कितने का डिफरेंस है, तो सर 5 का डिफरेंस, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अगर इस नंबर की बात करूंगा तो अगर 50 से कंपेयर करूंगा तो कितने का डिफरेंस 3 का, और 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन मैं इसे लिखूंगा 0 9। अब सर प्रॉब्लम है, अभी तक क्या कर रहे थे अपने
कि जो डिफरेंस था वो नंबर में से माइनस कर रहे थे, जो नंबर दिया हुआ था। ठीक है, आपको 50 के बेस में इस नंबर का यूज नहीं करना, जो भी नंबर दे रखा है आपको 50 के बेस में एक सिंपल चीज याद रखनी है, 25। 50 के बेस में आप किसका यूज करोगे, तो 25 का यूज करोगे, 25 का। ठीक है, 25 का यूज किस तरीके से करना है वो समझो। अगर नंबर 50 से ज्यादा है तो आप प्लस करोगे, और अगर नंबर 50 से कम है तो माइनस करोगे। किसमें प्लस और किसमें माइनस करना है, तो 25 में। 50 से ज्यादा है तो 25 में प्लस करूंगा, 50 से कम है तो 25 में से माइनस कर दूंगा। अगर मैं इसकी बात करूं 55, तो मुझे कितना डिफरेंस दिख रहा है, 5 का। ठीक है, तो ये 50 से ज्यादा है, तो अगर सर 50 से ज्यादा होगा तो इस 25 में आप 5 पहले ऐड कर लो, कितना आएगा, 30। अब सर 30 आया है, अब ये 25 एज इट इज इसके पीछे लगा दो, ये आपका जवाब है 3025। 50 से ज्यादा होगा तो 25 में प्लस करना है, 50 से कम होगा तो 25 में से माइनस करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल लो, 47, इस बार अगर कंपेयर करूं तो ये 50 से कम है, तो मुझे प्लस नहीं करना, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। लेकिन माइनस किस में करना है, आपके पास एक फिक्स नंबर है 25, इसी को आपको यूज करना है, या तो प्लस करना है या माइनस करना है। तो इस बार अगर मुझे माइनस करना है तो कितना माइनस करना है, 3। और 25 में से अगर मैं 3 को माइनस कर देता तो मेरे पास नंबर क्या आता, 22। और ये 09 उठा के मैं इसके पीछे लिख देता, तो ये मेरा 47 का स्क्वायर हो जाता 2209। और अगर मुझे 55 का स्क्वायर पूछा होगा तो आंसर होता मेरा 3025। दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर बेस 100 होगा तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको आपको जो नंबर दे रखा है उसी में से माइनस करना है। और अगर बेस 50 दे रखा है तो 50 दे रखा है तो फिर आपको जो नंबर दिया है उसको नहीं देखना, आपको एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स नंबर को याद रखना है, 25। ठीक है, अगर 50 से ज्यादा है तो 25 में ऐड कर लो, और 50 से कम है तो 25 में से माइनस कर लो, आपका आंसर आएगा। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे 43 का स्क्वायर निकालना है, तो सर इस बार 43 को अगर कंपेयर करूं तो ये 50 से कम है, कितना कम है, 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49, जो ऑलरेडी 2 डिजिट में है 49। इस बार मुझे माइनस करना है कि प्लस करना है, तो आपको यहां से दिखेगा कि आप माइनस करो कि प्लस करो। तो जैसे आपको दिख रहा है कि सर 50 से कम है तो आपको माइनस करना है, और अगर यही नंबर 50 से ज्यादा होता तो आपको क्या करना होता, प्लस करना होता। तो माइंड में इतना क्लियर है कि सर माइनस करना है। अब किस में से माइनस करना है, तो मैंने एक फिक्स नंबर आपको दे रखा है कि आपको जो भी प्लस या माइनस करना है वो एक फिक्स नंबर है आपका 25। इस 25 में से अगर आप 7 माइनस कर लेते हो तो ओरली आप बता सकते हो कि सर ये आएगा 18। कितना आएगा, 18, और 18 के पीछे ये 2 अंक एज इट इज यूज कर लो, तो आपका आंसर होगा 18,1849। चीजें क्लियर है। अब भले वो मुझसे 30 का स्क्वायर पूछ लेता, 35 का स्क्वायर पूछ लेता, एग्जाम में आपके जो स्क्वायर होते हैं वो तो 1 to 100 ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपको 446 का स्क्वायर पूछ ले, 332 का स्क्वायर पूछ ले। आपकी जो विंडो होगी स्क्वायर की वो 1 to 100 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, 1 to 100 के बीच में आपको स्क्वायर पूछ सकता है, और अगर आपको इनके बीच में अगर स्क्वायर पूछा है तो आप इजिली आंसर दे सकते हो। लेकिन 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो आपका था स्क्वायर, कि अगर कोई नंबर का मुझे स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं ओरली या विद इन 10 to 15 सेकेंड, मुझे 100 तक आप कोई भी नंबर बोलोगे मुझे याद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भी याद होगे, और इतना याद भी नहीं करना आपको। आपको कितना याद करना मैं पहले भी बता देता हूं, आपको 20 तक कर लो, इनफ है आपके लिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं 20 तक, क्योंकि अगर मुझे 18 का स्क्वायर पूछा तो मैं ये निकालने नहीं बैठूंगा। अगर मुझे याद है तो मैं इस मेथड से भी फास्ट बता सकता हूं कि 18 का स्क्वायर क्या होगा। अगर मुझे 17 का स्क्वायर पूछा है तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा। तो 20 तक बेसिक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके ऊपर अगर नंबर बढ़े तो आप इस तरीके से नंबर का यूज करके निकाल सकते हो। ये आपका था स्क्वायर। अब स्क्वायर तो लड़के निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके भी निकाल लेते हैं। अगर सी सेट का पेपर है
तो 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन में उनको ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो आपको क्वालिफाई करना होता है। तो मे भी लड़के इसका यूज करके निकाल लेते, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है कि उनको लाने तो क्या है 33% लाना है, ठीक है, वो इजिली ला सकते हैं क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और मैथ्स होती है। लेकिन अगर मैं इसको अगर जीपीएससी में लेके चला जाता तो वहां आपके मेरिट में ये चीजें काम आएगी, क्योंकि 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर मैं सिंप्लीफिकेशन के 1-2 क्वेश्चन रख देता हूं, तो अगर आप बेसिक से करोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक पता है कि आपको क्या यूज करना है, क्या अप्रोच लगानी है, तो आप यूज कर सकते हो। मैं स्क्वायर रूट पे आ रहा हूं, ठीक है, जिसको बोला जाता है वर्गमूल। अब स्क्वायर रूट में किस तरीके से बात कर रहा हूं, जितने भी स्क्वायर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है। मैं जो नॉन परफेक्ट होंगे उनके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको परफेक्ट स्क्वायर का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनका आपको स्क्वायर रूट पूछा जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लूं 144, तो आपको पता है कि सर 144 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर क्या आएगा 12। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 146 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो पॉइंट में आएगा, ठीक है, यस या नो। क्योंकि सर 146 की बात करूं तो 144 होता है 12 का और 169 होता है 13 का। तो इनके बीच में जो भी नंबर है वो तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। जैसे मैं बात कर रहा हूं 225, 225, तो 225 का आप इजीली फाइंड कर दोगे कि सर 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप जवाब दोगे सर 50। लेकिन जैसे ही मैं नंबर बड़ा कर देता हूं, जो चीजें आपको याद ही नहीं है, तो उसका आप नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। या फिर आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एक टिपिकल मेथड होता है, उससे आप फाइंड करते हो। जैसे 225 है, तो 225 को फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड करना रहता है। आप जैसे इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, और ये 5 से 5 टाइम जाएगा। फिर आप इसको 5 से करोगे तो 9 टाइम जाएगा। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम जाएगा, और ये 3 से 1 टाइम जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2-2 के पेयर बनाना। कितने के पेयर बनाना, 2-2 के। तो जब आप इसको पेयर बनाओगे तो सर ये 2 में से एक 5 बार निकलेगा और इन दोनों में से एक 3 बार निकलेगा, तो आपका आंसर होगा 50। लेकिन ये तो छोटा नंबर है, लेकिन मैं अगर नंबर बड़े ले लूं तो फिर मैं भी तकलीफ पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम लगेगा कि सर उसको सॉल्व करने में आपको ये सब चीजें करनी होगी। तो इससे बचने के लिए आपको एक दूसरा मेथड यूज करना होता है। उसके लिए कुछ बेसिक यूज चीजें लिख रहा हूं, वो समझ लीजिए। मैं यहाँ पे 1 to 10 स्क्वायर लिख रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 49, 8 64 और 9 का 80। ठीक है, मैंने कुछ स्क्वायर 1 to 10 तक लिखे हैं। अगर मैं 10 का स्क्वायर लिखूंगा तो 100 आएगा, 11 का स्क्वायर लिखूंगा तो 121 आएगा, 12 का स्क्वायर लिखूंगा तो 144 आएगा। इसी तरीके से अगर आगे जाओगे तो 169 और ये सब। फोकस ये 1 to 9 पे करना है, ठीक है। आपको यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए। जो लास्ट डिजिट होती है उसको बोला जाता है यूनिट डिजिट, और अगर गुजराती में बात करूं तो उसको बोला जाता है एकमनु अंक, ठीक है, एकमनु अंक या यूनिट डिजिट। तो जैसे 1 का अगर यूनिट डिजिट क्या है तो 1, 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है तो 4, 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है तो 9, 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6, इसी तरीके से 5 6 9 4 1। फिर आप जब वापिस आओगे 11 के यूनिट डिजिट पे तो फिर से क्या आएगा 1 आ रहा था। अब आप जब 12 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आ रहा है। 13 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। तो यही नंबर यूनिट डिजिट में रिपीट हो गए, यही नंबर क्या हो गए यूनिट डिजिट में रिपीट हो गए ऑलवेज। जैसे 10 के बाद 11 12 13 यही नंबर आपके रिपीट हो गए। इसलिए मैंने बोला कि आपको इस 9 तक फोकस करना है। अब मैं अगर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको 1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, या ऐसा समझिए कि यूनिट डिजिट मुझे 1 किस में मिल रहा है, किसके स्क्वायर में मिल रहा है,
तो आप बोलोगे कि सर 1 मुझे मिल रहा है एक तो 1 के स्क्वायर में, और मुझे एक 1 मिल रहा है 9 के स्क्वायर में। तो मैंने टेबल लिख ली कि मुझे यूनिट डिजिट 1 किसके स्क्वायर में मिलेगा, तो 1 और 9 के स्क्वायर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 यूनिट डिजिट आपको कहां मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि सर 2 तो कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे। इसका मतलब क्या है, मैं इतना बोल सकता हूं कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो गए उनके यूनिट डिजिट में 2 होगा ही नहीं। कोई भी ले लो, आपको पूछूं ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे नहीं है सर। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो मुझे 2 कहीं ना कहीं दिखता, मुझे यूनिट डिजिट में 2 कहीं ना कहीं दिखता, लेकिन 2 तो है ही नहीं। इसी तरीके से अगर मैं 3 की बात करूं, तो आप बोलोगे कि सर अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो उसके पीछे या यूनिट डिजिट में 3 नहीं होगा। चीजें क्लियर है? हाँ, लेकिन सर आप जब 4 की बात करोगे, यूनिट डिजिट 4 मुझे कहां मिलेगा, तो मैं बता सकता हूं कि 4 मुझे कहां मिलेगा, एक 2 के स्क्वायर में मिलेगा और एक मुझे 8 के स्क्वायर में मिलेगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं, 2 और 8। जब आप मुझे 5 का यूनिट डिजिट पूछोगे, तो मैं 5 का भी यूनिट डिजिट बता सकता हूं कि 5 ओनली 5 में मिलेगा। जैसे 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इसी तरीके से 25 का स्क्वायर 625। तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 5 का 5 ही मिलेगा। अच्छा सर 6 की बात करूं, तो 6 कहां दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 6 एक तो 4 में दिख रहा है मुझे, और एक 6 कहां दिख रहा है, 6 में। तो मैं 6 लिख लेता हूं। 6 एक तो 4 में दिखेगा और एक 6 में दिखेगा। 7 कहां दिखेगा, तो सर आपको 7 भी नहीं मिलेगा और आपको 8 भी नहीं मिलेगा, लेकिन 9 मिलेगा आपको। 9 कहां मिलेगा, तो सर 9 मिलेगा 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। अब ये टेबल आपको याद नहीं करनी, मैंने ये टेबल यहां से बनाई है। मैंने 1 to 10 तक आपके स्क्वायर लिखे हैं, और मुझे यूनिट डिजिट 1 का मिल रहा है, तो मैंने देखा कि 1 का मिलेगा, तो मुझे 1 और 9 के स्क्वायर में मिल रहा था। मैंने देखा कि 4 मुझे यूनिट डिजिट का मिल रहा है, तो सर 4 का मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 2 और 8 में मिलेगा। 5 मुझे कहां मिलेगा, तो 5 में मिलेगा। 6 कहां मिलेगा, तो मुझे 6 4 के स्क्वायर में मिलेगा और 6 के स्क्वायर में। मुझे ना तो 7 मिलेगा ना 8 मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। यहां तक चीजें क्लियर है? ये टेबल मैंने आपके सामने यहां से बनाई है, आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, लेकिन आपको लिख लेनी है ये टेबल। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये जो आपको 2, 3, 7 और 8 दिख रहे हैं, अगर ये किसी नंबर के पीछे होते यूनिट डिजिट में, तो मैं उनको ऐसा बोल सकता हूं कि ये सभी नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गए, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो उनके पीछे 2 होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होता तो 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि निम्न में से या फॉलोइंग में से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप 4 ऑप्शन में से ये चेक करोगे कि किन अंक के पीछे या किन डिजिट के पीछे आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है या 8 दिख रहा है। अगर ऑप्शन में ऐसे 3 ऑप्शन है जिनके लास्ट में या तो ट्रू है या 3 है या 7 है या 8 है, तो आप उनको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब इसका मतलब ये है कि वो सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एक ऑप्शन ले लेता हूं एग्जांपल। मान लीजिए मुझे परफेक्ट स्क्वायर में कुछ आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन ये दे दिया, तीसरा ऑप्शन ये दे दिया और चौथा ऑप्शन ये दे दिया। अब आपको इसमें से पूछा जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है या कौन सा नंबर है इन 4 में से, तो आप बता सकते हो कि सर ये जवाब होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 2 तो होगा ही नहीं लास्ट में, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 8 भी नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 7 भी नहीं होगा। तो 4 नंबर आपको याद रखने हैं। अगर आपको 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी नंबर दे रखा है, उसके लास्ट में यूनिट डिजिट अगर आपको इन 4 में से दिखता है,
तो वो नंबर आपके हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गए, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं हो गए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पीछे आपको 1, 4, 5, 6 और 9, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पीछे आपको या 0 यूनिट डिजिट में 0 मिल रहा हो, 1 मिल रहा हो, 4, 5, 6 या 9 वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे बोलोगे कि सर 121 ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 121 नहीं, 124 ले लो, 121 तो 11 का है, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो अभी आपने बोला कि सर 124, तो यूनिट डिजिट में तो 4 है, तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा जरूरी है। जिन नंबर के पीछे ये दे रखे वो तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर 100% है, लेकिन जिन यूनिट डिजिट के पीछे ये नंबर दे रखे वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। क्योंकि आप बोलोगे 124, तो सर यूनिट डिजिट तो 4 आ रहा है ना, तो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन नहीं है 124 परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं 176, तो भले इसके पीछे 6 आ रहा हो, लेकिन मैं नहीं बोल सकता ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब फंस जाओगे आप, ना तो आपको इतना नंबर स्क्वायर याद है और ना ये पता बता सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, ठीक है, तो क्या करोगे? अब ऐसे इसको आप सॉल्व करोगे अगर इस मेथड से, तो ऐसे 4 ऑप्शन दिखेंगे और 4 ऑप्शन में फिर तो मैं सोचता हूं कि उसको स्किप कर दूं, वो बेटर होगा। अगर मैं उसका आंसर दे रहा हूं तो मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, सिंपल सी चीज है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इसको सॉल्व करने में, मैं अंदर ही जजमेंट लगा चुका हूं कि मुझे 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, इसका कोई अल्टरनेटिव मेथड है सॉल्व करने का, तो मैं वो सोचूंगा कि इसका कोई दूसरा मेथड है कि नहीं सॉल्व करने का। चीजें क्लियर है? अब मैं स्क्वायर रूट पे फिर से आता हूं। अब मैंने आपके सामने टेबल लिखी थी कि सर आपको 1 का मिलेगा 1 और 9 में, मैंने आपके सामने लिखा कि 4 का मिलेगा आपको 2 और 8 में, 5 का मिलेगा आपको 5 में, आपको 6 का मिलेगा तो 4 और 6 में, और आपको 9 का मिलेगा तो 3 और। जो नंबर पहले मिलेगा उसे पहले लिखना है, जो नंबर बाद में मिलेगा उसे बाद में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप इसको 9-1 कर लो कि क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको 8-2 लिख लो, पहले 8 लिख लो और फिर 2 लिखो। जो नंबर जिस क्रम में आ रहा है उसी नंबर में आपको लिखना है। जैसे 1 पहले 1 में मिलेगा, फिर मुझे 9 में मिलेगा, 4 मुझे पहले 2 में मिलेगा, फिर मुझे 8 में मिलेगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, उसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो थोड़ी देर पहले अपन ने 47 का स्क्वायर रूट निकाला था, 47 का स्क्वायर निकाला था कि सर 47 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2209, ठीक है। तो इसी नंबर को मैं ले लेता हूं कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए मान लीजिए कि मुझे 2209 का स्क्वायर रूट निकालना है, मुझे ये नंबर याद ना हो कि ये 47 का स्क्वायर होता है, और मुझे पूछ लिया कि 2209 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का एक तो ये सिंबल होता है, आपको पता होगा, और अगर आपको ये नहीं दे रखा तो आपको पावर दे रखी होगी, जिसकी पावर क्या होगी, हाफ। अगर आप थोड़ा बेसिक मैथ्स जानोगे तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है या तो पावर हाफ दे रखी होगी या फिर इस तरीके से आपको सिंबल दिया होगा। इसका मतलब भी होता है ये 2 होता है, मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। किस नंबर का निकालना है, तो सर 2209 का मैं यहाँ पे निकालता हूं, बहुत सिंपल है समझना। जो भी नंबर मुझे दे रखा है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। 2 पार्ट में मतलब पीछे से 2 डिजिट छोड़ देता हूं। ऑलवेज मुझे इसको पीछे से 2 डिजिट छोड़ देनी है। मान लीजिए नंबर 6 अंकों का है, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ोगे तो बचेगा कितना, 4। 8 अंकों का है तो 2 छोड़ दोगे तो बचेगा कितना, 6। तो जो भी नंबर दे रखा है ऑलवेज आपको 2 डिजिट छोड़ देनी है। फिर आपको दूसरा काम करना है कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको, 9। तो जब आपको 9 दिखेगा तो इस टेबल में आइए, आपको 9 कहां मिलता है, तो आप बोलोगे कि सर या तो 3 में मिलेगा या मुझे 9
7 में मिलेगा। ये दूसरा काम आपको करना है। पहला काम क्या करना था, आपको 2 डिजिट छोड़ देनी है। सेकेंड काम करना है आपको लास्ट में कौन सा डिजिट दिख रहा है, यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, तो सर 9 दिख रहा है। 9 आपको कहां मिलेगा, तो 3 और 7 में। इसकी पिक्चर खत्म। अब इस पे आ जाइए, जो बचा हुआ नंबर है। बचा हुआ नंबर क्या बोल रहा है, तो सर मुझे बचा हुआ नंबर दे रखा है 22। इस 22 को आपको सोचना है कि किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा। 22 किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये 4 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर में 16 और ये 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये 4 और 5 के मिडल में आएगा। अब ये तो मैं इजीली बता सकता हूं कि मुझे पता है कि अगर मुझे 22 फाइंड करना तो मुझे पता है कि किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा, तो 4 और 5 के। ये आपको तीसरा काम करना है। फिर आपको एक और काम यहां पे करना है। 4 और 5 में छोटा नंबर कौन सा है, ऑलवेज आपको स्मॉलर नंबर लेना है। जैसे मैं 7 और 8 ले लेता तो स्मॉलर नंबर क्या बनता, 7। मैं 8 और 9 ले लेता तो 8। इसी तरीके से 4 और 5 में से स्मॉलर नंबर आपको मिलेगा 4। उस 4 को उठा के इसके आगे रख लो और इस 4 को उठा के इसके आगे रख लो। मतलब इतना तो कंफर्म हो गया, या तो ये मेरा आंसर 43 है या मेरा आंसर 47 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 चीजें मैंने बोली। पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो। आपका लास्ट नंबर क्या था, 9। 9 आपको कहां मिल रहा था, 3 और 7 में। फिर आपने क्या चेक किया कि सर बचा हुआ नंबर क्या था, 22। 22 आपको किसके मिडल में मिल रहा था, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 4 और 5 को अगर कंपेयर करूं तो मुझे छोटा नंबर क्या मिलेगा, 4। ये उठा के मैंने इसके आगे रख दिया। ठीक है, अब 50% तो आपका काम क्लियर हो गया कि 43 है या 47 है। अब सर इन दोनों में से परफेक्ट क्या जवाब है, या तो 43 या 47। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 22 को उठा के इसके मिडल में लाके रख दो। 16 और 25 के मिडल में उठा के रख दो और आप बोलोगे कि इस 22 को अगर मैं कंपेयर करूं 16 से या 25 से, तो किसके पास में है। तो आप देखिए, जब मैं किसके पास की बात कर रहा हूं, नियर किसके, तो आप बोलोगे कि सर ये 22 तो 25 के नियर में, मतलब सर ये नीचे वाले के पास में है। और अगर ये नीचे वाले के पास में होगा तो नीचे वाला जवाब, और अगर ऊपर वाले के पास में होता तो ऊपर वाला जवाब। तो आपका जवाब क्या आएगा, 47। ठीक है, 43 या 47 में कंफ्यूजन था, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो नंबर आपको दे रखा है उसको उठा के इसमें ला दीजिए बीच में। आप इन दोनों से कंपेयर करिए कि 16 के पास में है कि 25 के पास में है। 22 इज नियर बाय 16 और इट्स नियर बाय 25। तो आप बोलोगे कि सर ये 25 के नियर में, तो आपका जवाब नीचे वाला तो नीचे वाला। अगर ये ऊपर वाले के नजीक में होता तो ऊपर वाला। चीजें क्लियर है। एक और एग्जांपल समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। बड़ा नंबर ले लेते हैं कुछ। सेवन 5 6 9। मुझे इसका निकालना है, तो पहला काम मुझे क्या करना था, आंख बंद करके मुझे इसको 2 पार्ट में पीछे से 2 अंक आपको छोड़ देना है। आपको यहां पे भी टाइम नहीं लगना चाहिए कि ये 9 है तो क्या आएगा, क्योंकि 9 आपको कहां मिलेगा, 3 और 7 में। अब आपका फोकस होना चाहिए 75 पे, और जब आप 75 पे फोकस करोगे तो आपको पता है कि सर 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। मतलब ये 75 आपको किसके मिडल में दिखेगा, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये 75 इन दोनों के मिडल में दिखेगा। 8 और 9 में से अगर छोटा नंबर उठाना होगा मुझे, तो मैं क्या रख दूंगा, 8। तो या तो मेरा आंसर 83 है या मेरा आंसर 87 है। इस बार जब मैं 75 को कंपेयर करूंगा तो आप देखोगे कि आपको किसके पास में दिखेगा ये नंबर। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये 6 का डिफरेंस है और यहां पे डिफरेंस ज्यादा है, तो ये मुझे 81 के पास दिख रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 87। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और नंबर बड़ा कर लेते हैं कि मान लीजिए कि सर इससे भी बड़ा नंबर हो।
हाँ, लेकिन ये मेथड किसके लिए है? तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए नंबर क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। किसी का अगर वो वर्ग है तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, अगर वो किसी का वर्ग नहीं है तो आप फाइंड नहीं कर सकते इस मेथड से, फाइंड कर सकते हो दूसरे मेथड से, इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, आपको फर्स्ट काम क्या करना था? पीछे से 2 डिजिट छोड़ देनी है। जब आप 6 देखोगे तो 6 आपको कहाँ मिलेगा? तो सर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब नंबर है 158, क्योंकि 2 डिजिट अगर मैं छोड़ देता हूं तो मेरे पास बचेगा नंबर क्या? 158। और इस 158 को अगर मैं इस बार कंपेयर करूं तो मुझे पता है कि सर 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये जो 158 है वो किसके मिडल में आएगा? किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा? तो 12 और 13 के स्क्वायर के मिडल में। ठीक है, तो छोटा नंबर क्या है? सर 12 है, तो 12 क्या होता है? आप इसके आगे रख देते हो, तो रख दो। या तो आपका आंसर होगा 124 या आपका आंसर होगा 126। अभी भी मुझे चेक करना है, अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, या तो 126 दे रखा है या 124 दे रखा है, तो आपको सोचना नहीं है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है, 126 भी दिख रहा है और 124 भी दिख रहा है, तो एक स्टेप और आगे आपको करना है कि सर 158 किसके पास में आएगा। तो जब आप इसको चेक करोगे तो डिफरेंस देख लो कि अगर मैं 144 से 158 का डिफरेंस देखता हूं तो ये 14 का अंतर है। कितने का डिफरेंस है? 14 का। लेकिन जब अगर मैं यहां पे डिफरेंस देखूं तो ये डिफरेंस मुझे कम दिख रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? ठीक है, नंबर ऊपर वाले के पास में होगा तो ऊपर वाला आंसर, नंबर नीचे वाले के पास में होगा तो नीचे वाले का आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक आपको कहां मिलेगा? तो 1 और 9 में। 4 आपको कहां मिलेगा? तो 2 और 8 में। और 5 आपको कहां मिलेगा? तो 5 में। अब 5 वाले का तो कुछ भी करना नहीं है, वो तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो मैं एक एग्जांपल 5 वाले का बताता हूँ। क्यों? क्योंकि 5 तो एक सिंगल टाइम मिलेगा, तो वो तो बहुत इजी हो जाएगा। ब्रेक कर दिया, 5 का मिलेगा, तो सर इस बार तो सिंगल 5 ही आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। 5 क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, हाँ 156, तो सर 156 इस बार फिर से 12 और 13 के बीच में, और 12 और 13 में छोटा नंबर क्या है? 12। तो ये आपका आंसर। जब आपको 2 मिल रहे तो कंपैरिजन करना है, जब सिंगल नंबर मिल रहा है तो कोई कंपैरिजन नहीं है। 12 और 13 में छोटा नंबर क्या है? 12, तो 12 उठा के रख दो। चीजें क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्यूब पे आ रहा हूं। क्यूब क्या होता है वो देख लीजिए। क्यूब में मैं ऐसा बोलूं नहीं तो 20 तक आप याद कर लोगे ना तो बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सीरीज दे रखी है आपके रीजनिंग में, सीसेट में, आप रीजनिंग में देखोगे तो आपको सीरीज पूछी जाती है, जीपीएससी में देखोगे तो आपको सीरीज पूछी जाती है, एक तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। आप में उसको लॉजिक पता करना होता है। जैसे मैं कोई सीरीज लिख लेता हूँ, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो अगर मुझे क्यूब याद है 20 तक तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस लोगे, क्या लॉजिक बन रहा है, फिर मे भी इन दोनों का डिफरेंस लोगे। तो अगर आपको याद है कि सर ये 11 का क्यूब होता है, ये 12 का क्यूब लिखा है, ये 13 का हो जाएगा, ये 14 का हो जाएगा, तो नेक्स्ट 15 का क्यूब आना चाहिए 30, 33, 75। क्या होना चाहिए? 3375। तो ये चीज आपको वहां पे भी काम आएगी। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता, तब भी आपको लाइट हो जाता है कि सर 11 का क्यूब होता है 1331 और इसने 11 का क्यूब -1 करके लिखा है। 12 का क्यूब होता है 1728 और इसने एक माइनस करके लिखा है। लेकिन कब पता चलेगा? जब मुझे ये चीज याद होगी। नहीं याद होगी तो आप इसी में घूमते रह जाओगे, इसको सॉल्व कैसे करो, क्या लॉजिक है इसके पीछे। टाइम जहां लगता है ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गई या सीरीज हो गई,
तो रीजन क्या है टाइम लगने का? रीजन क्या है? क्योंकि उनको ये बेसिक अप्रोच नहीं पता। वो सोचते हैं कि याद करने से क्या बेनिफिट है। मैं बोल दूं ना कि आपको 20 तक टेबल याद करनी है, तो मुझे पता है कि आधे से ज्यादा लड़के याद नहीं करेंगे। क्यों? वहां आएगा तो कर देंगे ना सर, 17 इनको 13 करना होगा तो हम कर लेंगे। ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि 17 इंटू 13 कितना होगा एक नंबर का मार्क्स। लेकिन जब आप मैथ्स में कैलकुलेशन करोगे, उसका यूज करोगे, तो आपको बेनिफिट दिखेगा कि हाँ मैंने याद किया है टेबल और मुझे कहाँ काम आ रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन होती है ना, उसकी एप्लीकेशन आपको काम आएगी। अब जब याद कर रहे हो तो उसकी एप्लीकेशन में जहां जहां इसका यूज होगा वहां चीजें आपको काम आएगी, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो ऑप्शन से। ठीक है, जैसे एरिया और वॉल्यूम होता है, तो एरिया और वॉल्यूम में आप जाओगे ना तो आपको 22/7 दिखेगा। मोस्टली पाई का यूज होता है। जैसे सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच उसका वॉल्यूम। जैसे मैं क्यूब ले लेता हूँ, सॉरी क्यूब की बात नहीं, मैं शंकु ले लेता हूँ, कॉन ले लेता हूँ, तो कॉन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जहां जहां पाई का यूज है, ठीक है, तो मुझे इतना तो माइंड में है कि सर पाई है तो या तो 22 का मल्टीपल होगा या 11 का मल्टीपल होगा। तो मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे 4 ऑप्शन देखने हैं कि 11 का मल्टीपल मैच हो रहा है कि 22 का मल्टीपल मैच हो रहा है। 4 ऑप्शन में से 11 से जा रहा है या 22 से जा रहा है। जिससे जा रहा होगा उससे सॉल्व करके आगे निकल जाऊंगा। मुझे आता है सॉल्व करने, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। उसको बोलते हैं स्मार्टली। आप किस तरीके से उसका यूज कर रहे हो। चीजें क्लियर है? तो मैं आता हूं क्यूब पे। क्यूब क्या है? मैंने बोला आपको 20 तक क्यूब याद करना है। आप याद कर लो तो बेटर है। मैं 10 तक लिख लेता हूं। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब 216, 7, 343, 8, 512 और 9 होता है आपके पास 729। तो ये आपके 1 to 9 क्यूब होते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए अगर आपको कोई बड़े नंबर का क्यूब याद करना है या फाइंड करना है, तो उसके लिए बेसिक आपको ये 9 तक क्यूब याद होने चाहिए। बेसिक कितने तक याद होने चाहिए? 9 तक। इसका यूज देखिए। जैसे मान लीजिए मुझे 12 का क्यूब निकालना है, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि 12 का क्यूब निकालना है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, 20 तक याद करना आपको। ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि 12 का अगर मान लीजिए कि मुझे क्यूब निकालना है तो मेथड क्या बोलता है, किस तरीके से आपको करना है। आपको यहां पे 4 प्लेस फिल करना है। किस तरीके से 4 प्लेस फिल करोगे? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट मेरा 1 हो गया और सेकंड पार्ट मेरा 2 हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? 1 हो गया और सेकंड पार्ट हो गया 2। अब 1 मतलब 1 का क्यूब अगर 1 होता है तो मैं 1 यहां पे लिख दूंगा। फर्स्ट पार्ट 1 दिख रहा है और 1 का क्यूब क्या होता है? 1, मैंने पहले पे लिख लिया। सेकंड पार्ट क्या था? 2, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, मैं 8 लास्ट में लिख देता हूं। 2 प्लेस में ऑलरेडी बढ़ चुका हूं। पहले का क्यूब पहले ऊपर और दूसरे का क्यूब लास्ट में। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब ये 2 नंबर मुझे फिल करना है। इन 2 नंबर को किस तरीके से फिल करना है वो समझो। आप क्या करोगे? 1 into 2 कर लो, या 1 into 2 नहीं करना हो तो आप इस तरीके से कर लो। फर्स्ट का स्क्वायर इंटू 2, मतलब फर्स्ट नंबर का वर्ग इंटू 2। 2 क्यों किया? क्योंकि 2 दे रखा है। सेकंड नंबर का स्क्वायर इंटू 1। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 1 और इस बार सेकंड नंबर का स्क्वायर। या ये भी नहीं करना तो एक और शॉर्ट, इतना मत समझो, और शॉर्ट करा देता हूं इसको मैं, कंफ्यूजन होगा आपको कि सर क्या कर रहे हो। इससे बेटर है मैं डायरेक्टली आ जाता हूं। 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2। मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया सेकंड डिजिट पे। जो भी नंबर दे रखा है, अगर मुझे 13 दे रखा होता तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता? 3, मैं 3 लिख देता। 14 दे रखा होता तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4। अब लास्ट आपको ये प्लेस बनना है ना, इसको किस तरीके से फिल करना है? ये 2 है, इस 2 का डबल करके लिख लीजिए। जैसे अगर यहाँ पे 3 आ रहा होता तो 3 का डबल करके लिख देते, 4 आ रहा होता तो 4 का डबल। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
फर्स्ट का क्यूब फर्स्ट पे, सेकंड नंबर का क्यूब लास्ट में, जो दो नंबर दे रखे उनको मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा आपका सेकंड प्लेस ऊपर, और जो नंबर है मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है उसका फिर से क्या कर दो, डबल कर दो, तो वो आपके चार प्लेस फिल हो जाएंगे। लेकिन आप बोलोगे कि सर थोड़ी देर पहले अगर किसी ने कॉपी किया हो तो मैंने 12 का क्यूब क्या लिखा है ना 1728, लेकिन आप लेके आए हो 1248, मतलब ये आपका अभी भी आपको यहाँ पे कुछ काम करना है। क्या काम करना है वो समझो। 12 का क्यूब होता है 1728, लेकिन मैं लेके आया हूं 1248। मैंने 4 प्लेस तो फिल कर दिए। आपको जो दो लास्ट प्लेस दिख रहे हैं ना उनको छोड़ देना है, उनको अड़ना नहीं है, और मिडल नंबर के जो भी दिख रहे हैं उनको डबल करना है। 2 का डबल हो जाएगा 4 और 4 का डबल हो जाएगा 8, एंड देन इसको आपको प्लस करना है। लास्ट दोनों छोड़ दो, मिडल में जो भी नंबर है उनका फिर से डबल कर दो। 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, अब प्लस कर दो 8 और ये 8 ही आएगा। 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी कर चला जाएगा। 4 और 2 और 6 ये कितना हो जाएगा 7 और 1 का 1, तो यही क्यूब आ रहा था इसका। ठीक, एक दूसरा नंबर यहाँ पे आपको समझना होगा, ठीक है। 13 का क्यूब करना है तो मुझे कितने प्लेस फिल करना है, 4 प्लेस। मैं किस तरीके से फिल कर सकता हूं सर, 1 का क्यूब 1, इस 3 का क्यूब 27, मैंने लास्ट में लिख दिया। अब मैं ये ओरली कर सकता हूं कि सर 1 इंटू 3 कितना होता है 3, और 3 का डबल कितना होता है 9, सॉरी डबल मतलब मल्टीप्लाई 3 जो नंबर है उससे स्क्वायर ले लो उसका। अगर ये मल्टीप्लाई नहीं समझे तो इसका स्क्वायर ले लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। तो मैंने ये नंबर फिल कर दिया 13927। अब क्या करना था, आपने बोला कि सर ये लास्ट दोनों छोड़ दो, मैंने स्किप कर दिया। मिडल में जो नंबर था उनको डबल कर दो सर, 3 का डबल 6 और 9 का डबल 18, ठीक है, और इनको प्लस करना है। अब आपको इसी लाइन में प्लस करना है। 27 है तो 27 को पूरा को करना है, 9 और 18 है तो पूरे को 9 और 18 को प्लस करना है, 3 और 6 है तो 3 और 6 को प्लस करना है, और 1 को एज इट इज। जब आप इस 27 को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा कितना 7, और ये 2 कहां जाएगा, कैरी करेगा। 18 और 9 27 होता है, 27 और 2 होता है 29, 29 का फिर से क्या आएगा 9, और 2 इस बार कैरी करेगा यहाँ पे। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 का 1 आएगा और 1 कैरी करेगा, तो आपका आंसर कितना होगा 2197। तो ये आपका हो जाएगा 13 का क्यूब। लेकिन आपको 20 तक याद करना है, ठीक है। एग्जाम में मोस्टली आपको 25 30 तक क्यूब पूछ सकता है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि क्यूब में जब आप करने जाओगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। आप देख रहे हो जब आप 13 पे हो तो ये नंबर क्या बन रहा है 2197 हो रहा है। तो इस तरीके से जब आप 25 का निकालोगे 26 का निकालोगे तो नंबर और बढ़ता जाएगा। चीजें क्लियर है। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं क्यूब में, ताकि और अच्छे से आपको आइडिया आ जाए। अब आपको तकलीफ होगी इस 19 के क्यूब में, क्यों होगी वो बता देता हूं। 1 का क्यूब 1, इस 9 का क्यूब होता है 729। 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा, तो सर ये 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सर 81 हो जाएगा। मैंने 4 प्लेस तो फिल कर दिए, लेकिन सर अब क्या करना है, इन दोनों को छोड़ दो, तो आपको इनका डबल करना है। 9 का डबल होता है 18, और 81 का डबल कितना हो जाएगा, तो सर 160। अब इन नंबर को आप प्लस करोगे ना तो इसमें टाइम वेस्ट जरूर करोगे, इसको प्लस करने में। यहां तक तो चलो काम कर दिया, लेकिन आपका जवाब क्या कब आएगा, जब आप इन नंबर को प्लस करोगे। आप इन नंबर को जब प्लस करोगे तो आप क्या करोगे सर, ये 9 का 9 और 72 को कैरी कर दोगे। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं नहीं ये नंबर को प्लस करना है तो कितना जल्दी कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं आपको एक नंबर देता हूं उसको प्लस करना है। आप ही बताना कितना जल्दी कर सकते हो दोनों में से। ये 80 लिखा है, ये मैं कर सकता हूं 180 और 70। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं आपको प्लस करना है 72, 81 और 162, तो टाइम लगेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सर क्या करें, मैं यहाँ पे आपको वैदिक मैथ्स सिखाना चाहता हूँ। क्या सिखाना चाहता हूँ, वैदिक मैथ्स।
वैदिक मैथ्स का मतलब होता है मैं जब भी प्लस या मल्टीप्लाई जो भी करना है मुझे करना है, मैं इस तरीके से करूंगा। मुझे ये 162 से मतलब नहीं, मुझे ये 160 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 160। मुझे ये 80 दिख रहा है, और 160 और 80 मुझे पता है कि 240 होता है, और मुझे ये कितना दिख रहा है? 70 दिख रहा है। तो 240 इंटू प्लस 70 कर दूंगा तो 310। ओरली मैंने कर दिया 310। अब सर बचा हुआ क्या था? तो सर 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 310 में अगर 5 ऐड कर दूं तो 315 बनेगा, ये 5 बनेगा और ये 31 हो जाएगा। इस तरीके से करोगे तो भूल नहीं होगी आपकी कैलकुलेशन में, क्योंकि आपको आता है कि 160 और 80 करना, तो आप ओवरऑल कर सकते हो कि कितना होगा, तो 240 और 70 करना होगा तो आप बता दोगे कि 310। और बचा क्या था? तो सर 2 1 और 2 5, तो 310 में 5 ऐड कर दूंगा तो 315, 5 का 5 31 और 9 कितना हो जाएगा? 40, और ये कितना हो जाएगा? 58 का 5 और, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6859। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में मोस्टली 30 तक क्यूब पूछा जाएगा। क्यूब पूछ रहा हूं, क्यूब रूट होगा वो बड़ा होगा नंबर, वो आपको 100 से भी ज्यादा पूछ सकता है क्यूब रूट, लेकिन अगर उसका क्यूब निकालना होगा तो आप मैक्सिमम कितने तक जाएगा? 30 तक। अब सर क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वो आते, ये आपको करना है, नहीं करना पड़े इससे बेटर है। मैं तो आपको अभी भी सलाह दे रहा हूं कि आप 20 तक याद कर लो, ठीक है। जहां जहां अगर जरूर पड़ेगी तो आपको सोल्व करना ही है। अब आ जाओ क्यूब रूट क्या होता है वो समझो। तो सर जिस तरीके से स्क्वायर का अपन ने स्क्वायर रूट देखा, इसी तरीके से आपको क्यूब का क्या देखने को मिलेगा? क्यूब रूट देखने को मिलेगा, जिसको आपको बोला जाता है स्क्वायर रूट। में आपने देखा कि सर पावर कितनी थी? हाफ। यहाँ पे आपको पावर कितनी देखने को मिलेगी? 1/3। अगर किसी संख्या के ऊपर या किसी नंबर के ऊपर आपको पावर 1/3 मिल रही है तो उसका सिंपल मतलब है कि आपको क्यूब रूट निकालना है। या फिर अगर सर पावर 1/3 नहीं होगी तो क्या होगा? तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ होगा। इसका भी मतलब क्या है कि आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। मैं कोई नंबर ले लेता हूं, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। इससे पहले अपने आते हैं, मैंने आपको लिखा है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। अब आपको अगर मैं पूछूं कि यूनिट डिजिट में 1 का मिल रहा है तो आप बोलोगे कि सर सिंगल ही मिल रहा है, एक टाइम 1 में मिल रहा है। मैं आपको पूछूं कि यूनिट डिजिट में 2 का मिल रहा है तो आप इस बार इसमें बता सकते हो कि आपको यूनिट डिजिट में 2 का मिल रहा है, तो सर 2 का मिलेगा तो मुझे 8 के क्यूब में। और अगर मैंने स्क्वायर रूट में आपसे पूछा होता कि 2 का मिल रहा है तो नहीं मिलता सर। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको 2 नहीं दिखेगा, यहाँ पे 2 दिख रहा है। अगर मैं आपको पूछूं 3 का मिलेगा तो आप 3 भी बता सकते हो कि सर 3 मुझे 7 के क्यूब में मिल रहा है। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे तो वहां पे 3 था ही नहीं। 4 का मिलेगा तो सर 4 मिलेगा 4 में, 5 का मिलेगा तो 5 में, 6 का मिलेगा तो 6 में, 7 का मिलेगा तो 3 में, 8 का मिलेगा तो सर 8 आपको का मिलेगा तो 2 में, और 9 का मिलेगा तो 9 में। मतलब आपको 1 से लेके 9 तक सभी अंक आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें। जबकि स्क्वायर रूट में आपको ना तो 2 देखने को मिल रहा था, ना 3, ना 7, ना 8, लेकिन यहां पे आपको 1 to 9 सभी नंबर एज इट इज देखने को मिल रहे हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि सर स्क्वायर रूट में कुछ नंबर 2 बार आ रहे थे, जैसे 1 दिख रहा था मुझे 1 और 9 में, 4 मुझे दिख रहा था 2 और 8 में। लेकिन यहां पे इतना इजी हो गया सर कि सभी नंबर सिंगल टाइम ही आ रहे हैं, रिपीट ही नहीं हो रहे। 1 एक ही बार आएगा, 5 भी एक ही बार आएगा, 9 भी एक ही बार आएगा। तो इसका तो आप स्क्वायर रूट बहुत इजी फाइंड कर सकते हो। देखिए वहां पे मैंने आपको बोला था कि आपको पीछे से 2 अंक छोड़ने हैं, यहाँ पे आपको पीछे से 3 डिजिट छोड़ने हैं, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है 3 और स्क्वायर का मतलब होता है 2। तो स्क्वायर रूट होगा तो 2 डिजिट छोड़ना है, और क्यूब रूट पूछा होगा तो आपको 3 डिजिट छोड़ना है।
अब सर लास्ट में क्या है 7, और 7 अगर मैं देखूं तो मुझे किसके अंदर मिलेगा 7, तो 3 के अंदर। 7 कहां दिखेगा, तो सर 3 के क्यूब में, तो मैंने 3 लिख दिया। यूनिट डिजिट मुझे 7 कहां मिलेगा, तो 3 के अंदर। ठीक है, अब बचा क्या है मेरे पास, तो सर बचा तो 2 ही है। और अगर इस 2 की बात करूं तो वहां पे अपने चेक कर रहे थे कि किसके वर्ग के मिडल में आ रहा है, किसके स्क्वायर के मिडल में आ रहा है। यहां पे आपको चेक करना है किसके क्यूब के मिडल में आ रहा है। तो 2 आप बोलोगे कि सर 1 और 2 के मिडल में आ रहा है, और 1 और 2 में छोटा नंबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये आपका आंसर। तो ये किसका क्यूब होता है, 13। एक दूसरा नंबर ले लेते, 4913 का अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो पहला काम करना है आपको पीछे से 3 डिजिट छोड़ देना है। आपको लास्ट में 3 मिल रहा है। अब यहाँ पे चेक करिए कि सर 3 कहां मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 7 में मिलेगा, तो मैं 7 लिख देता हूं। अब बच क्या गया 4, और 4 किसके मिडल में आता है, तो सर 1 और 2 के मिडल में, और छोटा नंबर क्या होता है, तो 1। ये आपका आंसर। तो आपने देखा कि सर क्यूब रूट इजी है स्क्वायर रूट से। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 नंबर आते हैं, वहां पे कंपैरिजन करना पड़ता है। यहां पे सिंगल डिजिट मिल रहा है, मुझे कंपैरिजन नहीं करना। मैं ओरली जवाब दे सकता हूं कि किसका क्यूब रूट होगा। ये चीजें क्लियर है? तो ये आपके क्यूब रूट है। आप इस तरीके से आप कोई भी नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा तो निकाल सकते हो। क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। आप आगे मुझे बोलोगे कि सर 4914 का क्यूब रूट क्या होगा, तो मैं इस मेथड से नहीं फाइंड कर सकता, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। चीजें क्लियर है? तो मैंने 4 चीजें डिस्कस की, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। सर ये किसके पार्ट होते हैं, किसमें पूछे जाते हैं? डायरेक्टली तो किसी का स्क्वायर रूट पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्टली किसी का स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा। तो ये पार्ट किसका होता है, तो ये पार्ट होता है सिंप्लीफिकेशन का, जिसको अपने बोलते हैं सादू रूप। ठीक है, या हिंदी में बात करूं तो सरलीकरण बोलते हैं, और गुजराती में बात करेंगे तो सादू रूप बोलेंगे, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो समझते हैं। स्क्वायर आएगा, क्यूब होगा, स्क्वायर रूट होगा, और क्यूब रूट होगा, पहली चीज। सेकंड, इसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू देखने को मिलेगी, जिसको गुजराती में बोलते हैं अपूर्णांक। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब इसका जवाब क्या होगा वो आता है, ठीक, जिसको आपने बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। नेक्स्ट, इसमें आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगी। सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक तो अच्छा लड़का होगा जो 29 का वर्ग जिसको याद होगा, और 18 का वर्ग याद होगा, वो निकाल लेगा। जो मान लीजिए कि जिनको याद नहीं है, वो थोड़ा और स्मार्ट होगा, वो सोचेगा कि सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और मुझे पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस कर दूं और एक बार माइनस कर दूं। ठीक है, जिसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको सिंप्लीफिकेशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। a प्लस बी का क्यूब देखने को मिलेगा, a माइनस बी का क्यूब देखने को मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें कहाँ आएगी, सिंप्लीफिकेशन के अंदर, जहां आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना होगा। ठीक है, एक आपको इसके अंदर अदर चीजें बहुत सारी होती है, जैसे परसेंटेज बेस आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। परसेंटेज बेस किस तरीके से, अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख लेता हूं 15% ऑफ 240, ये भी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। ठीक है, मतलब आपको परसेंटेज आना चाहिए 15% ऑफ 240। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो 15/100 करोगे, ऑफ का मतलब आप इनटू करोगे और 240 करोगे। तो ये बेसिक किसका हो गया, परसेंटेज का पार्ट हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको एक चीज देखने को मिलती है जो लड़के बहुत मिस्टेक करते हैं, बोर्ड मास, जिसको अभी भी बोर्ड मास एक इसका एक्सटेंड रूप देखने को मिलता है, वी बोर्ड मास। ठीक है, गुजराती में बागु सभा, वी का मतलब वर्णकुलम होगा, ब्रैकेट होगा,
ऑफ होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन। आपको कोई इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन में आपको वी बोर्ड मास करके उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। एक एग्जांपल समझा देता हूं किस तरीके से। ये 4 चीजें लिख ली हो तो मैं एक नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूं किस तरीके से। अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं ना तो आधे से ज्यादा बच्चे इसका जवाब नहीं दे सकते। मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं, भले वो पहले साल में हो, दूसरे साल में हो या तीसरे साल में हो, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सर अब इसका आंसर क्या आएगा? अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बोर्ड मास की जरूरत पड़ती है। सर बोर्ड मास में तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन यहाँ पे तो आपने ओनली क्या यूज किया है? डिवीजन यूज किया है। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे? तो इसको ऑलवेज लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया जाता है। लेफ्ट टू राइट का मतलब जो पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व करोगे, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में सॉल्व करोगे। तो अगर मुझे ये क्रम में सॉल्व करना तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये क्या बनेगा? फिर एज इट इज 5, एज इट इज 5, एज इट इज। अब इसको सॉल्व करूंगा, ये क्या बनेगा? 1/5। फिर एज इट इज 5, एज इट इज 5। अब जब आपको पता है कि आप जब ये डिवाइड का साइन हटाओगे तो आपको साइन कौन सा यूज करना होता है? मल्टीप्लाई का। जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो जो नंबर होता है वो रिवर्स मारता है। ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाएगा। जब जैसे मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये जैसे 5/1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 1/5 एज इट इज था, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और नंबर रिवर्स मार गया और एक 5 एज इट इज। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे कि सर ये तो 125 हो गया, और ये फिर से रिवर्स मार के क्या हो जाएगा? 1/5। तो लास्ट में आपका इसका आंसर क्या आएगा? 1 डिवाइड में 125। ठीक है, पहली चीज। अब ये तो हो गया मेथड, लेकिन अगर मैं एग्जाम में इतना करने लग गया ना तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको इस तरीके से करूं। अब आते हैं कि सर इसको सॉल्व करने का दूसरा वे क्या हो सकता है? कितने 5 थे? 4 थे ना? 4 ही थे कि 5 थे? देख लेते। आप यहां पे 1 लिख लीजिए क्योंकि 1 ही आएगा। उसके बाद जितने भी 5 आ रहे हैं सबको नीचे लेके आ जाइए। आपका आंसर कितने 5 आ रहे थे? 1, 2 और 3, तो मैं नीचे लेके आ गया 3। 5 का क्यूब मतलब 125। मान लीजिए 4 5 होते तो 5 की पावर 4 हो जाती। चीजें क्लियर है? ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो आपको इस वे में सॉल्व करना है। अब अदर्स में सिंप्लीफिकेशन में क्या बच जाता है जो बच्चों को बहुत तकलीफ देता है आज की तारीख में? अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं एक्सप्रेशन तो वो समझ ही नहीं पाएगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इस एक्सप्रेशन को। हाँ, थोड़ा जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होगे तो मे बी वो इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उनका सॉल्व करने का वे और कॉम्पिटिटिव में जो सॉल्व करने का वे होता है वो बहुत अंतर होगा, डिफरेंस होगा। क्योंकि वो इसको सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन वही प्रॉब्लम आएगी कि सर फिर से टाइम मैनेज करना है। ठीक है, मुझे आते सॉल्व करना सब आता है। समझो एक चीज, मैं एग्जाम में बैठा, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, मुझे मैथ्स आता सब कुछ है, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या इससे ऊपर दे रहा हूं ना तो कोई मतलब नहीं उस सॉल्यूशन का। तो उससे बेटर है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं। चीजों को समझना। अब सर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का वे होता है, पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर आप ऊपर जाओ, फिर आप ऊपर जाओ, फिर आप ऊपर जाओ, सीढ़ी चढ़ते रहो। मैं इसको एक दूसरे वे में सॉल्व करता हूं। मुझे ये काउंटिंग करना है 1 2 3 और 4। मैंने देखा कि 4 बार आपको ये प्रोसेस करना है। कितनी बार करना है? 4 बार। क्यों? क्योंकि 4 पिलर मुझे दिख रहे थे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो जितने पिलर थे मैंने उतने डॉट ले लिए, 1 2 3 और 4। मतलब ये प्रोसेस मुझे 4 बार करना है। अब सर लास्ट में क्या दिख रहा था आपको? 1/2। तो 1/2 में पहले क्या आना चाहिए? तो फिर सर पहले 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए। तो लो ये 1 और ये 2। ठीक है, अब पहली क्लास का लड़के को भी बिठा दो तो वो भी प्लस करना जानता है, और आपको बिठा दो तो आपको भी आता है एडिशन करना। तो दोनों सेम वे में एडिशन करेंगे। किस तरीके से? सर 2 और 1 कितना होता है? 3। 3 और 2 कितना होता है?
5, और 5 और 3 कितना होता है 8, और 8 और 5 कितना होता है 13। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 8 और 5 13। मैंने 4 बार प्लस कर दिया। क्यों 4 बार किया? क्योंकि मुझे ये प्रोसेस 4 बार करना था। अभी भी इसके नीचे होता तो मुझे 5 बार करना होता, इसके नीचे होता तो 6 बार करना होता। तो 4 बार था तो मैंने 4 बार इसको प्लस कर दिया। अब लास्ट में आपको क्या दिख रहा है 13। लास्ट में 13 होगा, वो कब आएगा नीचे, और 13 से पहले नंबर क्या दिख रहा है 8, वो ऊपर। ये आपका आंसर 8/13। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1/2 को सॉल्व करना था। मैंने देखा कि ये मुझे 4 बार प्रोसेस करना है, तो मैंने 4 डॉट ले लिए, 1 2 3 और 4। मुझे ये नंबर दिख रहा था लास्ट में 1/2, मतलब सर पहले 1 ले लो फिर 2, क्योंकि पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, तो मैंने 1 ले लिया 2 ले लिया, और सिंपल सा एडिशन किया। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। अब लास्ट में 13 है तो नीचे 13 ले लो, और उसके पास में 8 है तो 8/13। और अगर मैं इसको टिपिकल वे में सॉल्व करता, तो अभी बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा। करना नहीं है आपको, आप इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2 1 = 2, 2 और 1 3/2, और 3/2 के ऊपर अगर कोई पर नंबर के ऊपर 1 दिया होता है तो ये नंबर रिवर्स मारता है। मतलब सर 2 1 = 2, 2 और 1 3, 3/2 होना चाहिए। 3/2 के ऊपर 1 है, मतलब कितना होना चाहिए 2/3 होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाती निकल के 2/3। फिर सर 1 से मल्टीप्लाई करते तो 3 1 = 3, 3 और 2 5/3 होता। 5/3 को रिवर्स मारता तो ये नंबर क्या बन जाता 3/5। फिर से सर 1 से मल्टीप्लाई करता तो 5 1 = 5, 5 और 3 8, 8/5 जब रिवर्स मारता तो ये नंबर क्या बन जाता 5/8, और 8 1 = 8, 8 और 5 13/8 होना चाहिए, पर रिवर्स मारेगा नंबर तो क्या बन जाएगा 8/13। लेकिन मैंने इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, एकदम सिंपल वे में कर। मैं यहाँ पे भी प्लस कर रहा हूँ और यहाँ पे भी प्लस कर रहा हूँ, पर मैंने इस बार क्या कर दिया थोड़ा मेथड डिफरेंट ले लिया कि सर ये इजी लग रहा है प्लस कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किस तरीके से प्लस कर रहे हो। यहाँ पे आपको नहीं पता चला होगा कि मैंने किस तरीके से किया है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार इसको काउंट करेंगे तो सर 1 2 3 और 4, तो मुझे 4 बार प्रोसेस करना है, 1 2 3 और 4। मुझे लास्ट में क्या दिख रहा है तो सर 7/8, मतलब पहले 7 आना चाहिए फिर 8 आना चाहिए। आप जब इसका प्लस करोगे एडिशन तो 8 और 17 15, 15 और 8 23, 23 और ये 38, और 38 और 23 कर दो तो 38 और 48 58 और 61 61। ठीक है, आपका जवाब क्या होना चाहिए 38/61। ये चीज ध्यान रखना है, जो लास्ट में आ रहा है उसको नीचे लेना है, और जो उसके पहले आ रहा है उसको ऊपर लेना है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 38/61। तो लो, भले मुझे ये दे रखा था, लेकिन इसको भी मैंने 10 सेकंड के अंदर सॉल्व किया, 15 सेकंड के अंदर किया। अच्छा, मैक्सिमम 40 सेकंड लो, जो थोड़ी मेरी मैथ्स खराब हो तो मैक्सिमम पकड़ लिया 40, इससे तो खराब नहीं होगी प्लस करने में, इतना तो कर ही सकते हो। तो अभी आपका जवाब 38/61। अब आपके क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि सर ये तो आपने सभी जगह प्लस लिया है, एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, वो थोड़ी आपके मुताबिक चलेगा कि सभी जगह प्लस हो, वो माइनस ले लेगा। तो माइनस में भी कोई तकलीफ नहीं है, बस आपको माइनस करते आना चाहिए। इस बार मैंने क्या ले लिया माइनस। प्रोसेस तो सेम है 1 2 और 3। तो कितनी बार प्रोसेस करना था सर 3 बार करना था। पहले क्या लिखा हुआ था तो सर पहले 5 लिखा हुआ था और फिर क्या लिखा हुआ था 4। अब आपको माइनस करने आना चाहिए कि 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अच्छा -1 में से, अब ये समझना, -1 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है 4 को, तो -1 और -4 कितना बनेगा -5 बनेगा। सर फिर से -5 है,
आपको क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, -1 को करना है। तो जब आप इस माइनस और माइनस को करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, -5 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -4। तो ये हो गए 3 टाइम प्रोसेस। क्लियर हो? एक बार माइनस किया तो 4 में से 5 गया तो -1, -1 में से 4 माइनस किया तो -5, और -5 में से -1 किया तो -1 प्लस 1 बन जाएगा, तो -4, 5 में से 1 जाएगा तो -4। अब लास्ट में क्या था, तो सर -4, और ऊपर क्या था, तो -5। ये माइनस से माइनस कैंसिल, आपका जवाब 5 है। और पेपर सेटर एक और एडवांस है, आपसे एक और एडवांस है, वो इस तरीके से करता है। कुछ जगह प्लस दे दिया, कुछ जगह माइनस दे दिया, तो जहां प्लस था वहां प्लस कर लो, जहां माइनस है वहां माइनस कर लो। चीजें क्लियर है? जहां प्लस दे रखा है वहां पे प्लस कर लो, जहां माइनस दे रखा है वहां पे माइनस कर लो। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस बार मुझे 3 बार करना था, 1, 2 और 3। लास्ट में क्या था, 5 और 4। पहली बार क्या करना है, तो प्लस करना है, तो 4 में 5 ऐड करूं तो 9। दूसरी बार क्या करना है, माइनस करना है, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5। और तीसरी बार क्या करना है, तो प्लस करना है, तो 5 और 9 कितना हो जाएगा, 40। तो जहां आपको साइन प्लस का दे रखा हो तो प्लस कर लो, माइनस का दे रखा हो तो माइनस कर लो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर ये आपका आंसर बन जाएगा 5/40। एक और एडवांस, आपसे भी एडवांस सोच रहा है, एग्जामिनर है, कुछ भी सोच सकता है। अब क्या करोगे, सर आपने बताया कि प्लस था तो प्लस कर लिया, माइनस था तो माइनस कर दिया, लेकिन आपने जब क्वेश्चन दिया तो सभी जगह 1 1 1 1 था। अब आपने जब क्वेश्चन दिया तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है। तो अब इसको कैसे करोगे, तो ये लास्ट पैटर्न होता है, इसके आगे वो आपको फंसाएगा नहीं, कोई पैटर्न ही नहीं बनता। तो अगर इस तरीके से वो पहुंचता है तो इसका भी सॉल्यूशन है। आप सेम मेथड को अप्रोच करोगे, 1, 2 और 3, तो आपको 3 टाइम्स करना है। लास्ट में आपको 1/4 दिख रहा है, मतलब पहले 1 और 4 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 है, तो यहाँ पे आपको -1, ये -1 है ना, माइनस करना और 1 से मल्टीप्लाई करना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको प्लस का 3 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे +3 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आपको प्लस का 2 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे +2 लिख रहा हूँ। 1 था तो मैंने जो भी प्लस या माइनस था तो -1 लिख लिया, +3 था तो ऊपर +3 लिख दिया, और +2 था तो ऊपर +2 लिख दिया, ठीक है। इस बार आपको क्या करना है वो समझना, किस तरीके से करोगे आप। ये जो ऊपर जो भी नंबर है ना, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। फिर क्या करना है सर, माइनस करना है। ये माइनस क्या बता रहा है कि आगे नंबर प्लस करूं कि माइनस करूं। ये 1 क्या बता रहा है कि मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 जा 4, और 4 में से 1 जाएगा तो। अब ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9, और ये प्लस क्या बता रहा है कि सर आगे वाला नंबर प्लस कर दो, तो 3 इंटू 3 9, 9 और 4 13। अच्छा 13 को किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 2 से। 13 2 26, और ये प्लस क्या बता रहा है कि आगे वाला नंबर प्लस कर दो, तो 13 2 26, 26 में 3 ऐड कर दूंगा तो 29। तो यहां पे मेरा जवाब क्या आ जाएगा, 13/29। ये जो नंबर है ये आपको इतना इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको पहले नंबर मल्टीप्लाई करना है, और ये जो साइन है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे -1 +3 +2, तो आप ऐसा मत सोचिए कि 4 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, नो, -1 से नहीं करना। अगर आप 4 को -1 से करोगे तो -4 आएगा, ठीक है। आपको 4 को तो 1 से ही करना है, 4 1 जा 4। ये माइनस आपको बता रहा है कि आगे प्रोसेस क्या करूं, प्लस के माइनस। तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 इंटू 3 9, 9 में प्लस बता रहा है कि मुझे आगे का नंबर प्लस करना, तो 9 और 4 13, और 13 2 जा 26, और 26 में 3 ऐड करना है तो 29। तो ये आपका लास्ट पेपर सेटर का, अगर जो थोड़ा एडवांस सोचता है तो वो इस तरीके से आपको बाइक्यूलेट कर सकता है, और थोड़ा स्मार्टली और थोड़ा भी सोचता है ना। क्योंकि बच्चे होते, बच्चे बोलते सर आपने ये तो करवाया नहीं, तो कॉमन सेंस नहीं लगाते कि ये तो करवाया नहीं,
उसमें करवाने जैसा नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर 1 नहीं लिखता तो आपका जवाब क्या होता? 29/30। तो पहले 29 आता फिर 13 आता, लेकिन मैंने इसके ऊपर 1 लिखा इसलिए नंबर रिवर्स मार रहा है। नंबर रिवर्स कब मार रहा है? जब मैं इसके ऊपर क्या लिख रहा हूं? 1 लिख रहा हूं, तो जवाब आ रहा है 13/29। तो अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर कुछ नहीं होता, ये इस तरीके से पूछा जाता, तो इस केस में आपका नंबर क्या जवाब होता? तो सर इस केस में आपका जो जवाब होगा वो जवाब क्या होगा? जो लास्ट में आएगा उसको ऊपर लिख लो, और जो बाद में आ रहा है, जो उससे पहले आ रहा है, उसको नीचे लिख लो। ठीक है, लेकिन इतना मत सोचो, आप तो एक ही प्रोसेस याद रखो कि हमको लास्ट वाला लास्ट में रखना है, इससे पहले वाला ऊपर रखना है। फिर आप चेक करो कि ऊपर 1 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अगर ऊपर 1 दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दे रखा हो तो इसका ही रिवर्स मार दो, क्योंकि ये आपका जवाब कब का था? ये आपका जवाब जब ये क्वेश्चन था तो ये जवाब था। अगर मैं इस 1 को हटा देता तो मेरे पास आंसर क्या आता? 29/30। तो इतना सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, ट्रिक तो होती है, ट्रिक के साथ आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को भी पकड़ना पड़ेगा कि इसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों मैं 13/29 लिख रहा हूँ और क्या रीजन है कि 29/13 लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे यहाँ तक क्लियर है? एक लास्ट डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैथ से ओवर हो जाएगा आपको, मैं ज्यादा करवाऊंगा तो। ठीक है, थोड़ा बोर्ड मास समझ लेते हैं कि सर बोर्ड मास क्या होता है। V को बोला जाता है विनकुलम, B को बोला जाता है ब्रैकेट, O को बोला जाता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, और A का मतलब हो जाएगा एडिशन, और S का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आपको मैथ्स में अगर कोई चीज सॉल्व करनी, कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आपको एक बेसिक नियम ध्यान रखना है कि इसी वे में सॉल्व होगा। इसका नाम आपको दे दिया वी बोर्ड मास। मतलब आप ब्रैकेट से पहले इसको सॉल्व नहीं कर सकते, डिवीजन को प्रायोरिटी पहले नहीं दे सकते, आपको पहले प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? ब्रैकेट को। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से पहले प्रायोरिटी नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो और फिर डिवीजन सॉल्व करो, आप पहले क्या सॉल्व करोगे? डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो ये स्टेप होते हैं, इसी स्टेप में आपको सॉल्व करना होता है। आपके लिए नया होगा विनकुलम क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सीधा, मतलब क्रॉस लाइन। किसी नंबर के ऊपर अगर मैं क्रॉस लाइन अगर कर देता हूं, बार नहीं है, बार अलग चीज होती है, अभी भी समझा रहा हूं। बार का मतलब क्या होता है कि नंबर इंफिनिटी टाइम रिपीट मारेगा सेम नंबर, उसे बार बोला जाता है। लेकिन मैं विनकुलम की बात कर रहा हूं, विनकुलम क्या होता है वो समझ लो। मैंने कोई इक्वेशन लिखी है 2 डिवाइड 5 माइनस 15, और उसके ऊपर मैंने विनकुलम लगा दिया, क्रॉस लाइन लगा दी। अब अगर आप क्रॉस लाइन को नहीं देखोगे, अगर मैं ये क्रॉस लाइन नहीं देता, जैसे मैं इस तरीके से देता हूं, तो आप पहले क्या सॉल्व करते? रूल के मुताबिक। कि सर रूल के मुताबिक पहले क्या सॉल्व होना चाहिए? डिवीजन। फिर क्या सॉल्व होना चाहिए? तो फिर माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं, एडिशन भी नहीं है, तो माइनस। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते? आप क्या करते कि सर 2/5 माइनस 15/1 करते। पहले क्या सॉल्व करते? डिवाइड को सॉल्व करते। ऐसा तो नहीं कि 5 में से 15 जाके आप -10 लिख लो और फिर 2/5 10 कितना होता है तो 1/5 लिख के आ जाओ। आपको सॉल्व क्या करना है? पहले डिवाइड सॉल्व करना है। तो डिवाइड को सॉल्व करोगे तो 2/5 माइनस 15/1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा करना हो तो, या फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब मैं मैथ्स करवाऊंगा तो बहुत से मेथड बताऊंगा, अभी सिंपल समझ लीजिए क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसको 5, यहाँ पे 1 है और ये 5 है, तो इसको 5 बनाने के लिए मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूँ। नीचे क्या था? 5। अच्छा, मैं आपको बोलूं कि 1/5 प्लस 2/5 को प्लस करना है तो आप कर लोगे 3/5।
क्यों? क्योंकि सर डिनोमिनेटर सेम था, तो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप डायरेक्टली प्लस कर लो, ठीक है ना। तो मैंने इसको वही चीज बनाई, मुझे ये नहीं आता कैलकुलेशन करना, मुझे दिख रहा था ये 5 है तो इसको 5 बनाना है, तो इसको 5 बनाने के लिए अब मुझे ऐसा कहा गया कि सर ये 1 है तो 5 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं अगर इसमें नीचे छेड़छाड़ कर रहा हूँ 5 से मल्टीप्लाई करके, तो मुझे ऊपर भी, जिससे मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया मेरे पास 75, ये हो गया मेरे पास 2, तो 2 माइनस 75 क्या होना चाहिए? -73/5, क्योंकि नीचे तो 5 है ना, तो मेरा जवाब क्या होता है? -73/5। लेकिन सर अगर इसको सॉल्व करना है तो देखिए आंसर चेंज हो जाएगा। अब सर डिवीजन से पहले भी सबसे पहले आता क्या है? क्रॉस लाइन, मतलब मुझे इसको फोकस करना है, फिर मुझे इस डिवाइड पे नहीं आना, मुझे इसको देखना है, पहले इसको सॉल्व करना है। और इसके नीचे क्या है? तो सर 5 माइनस 15, 5 माइनस 15 को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 10। और अब ये क्या है? 2 डिवाइड, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये सर क्या हो जाएगा? 2/10 माइनस का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1/10। दोनों में डिफरेंस आपको पता चला होगा, दोनों क्वेश्चन का अंतर क्या था और आंसर क्या है। अगर उसके ऊपर विनकुलम लिखा हुआ है तो उसका मतलब सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी देनी है, फिर बाकी आपको सॉल्व करना है। और अगर मैं ये नहीं देता तो फिर नीचे एज इट इज चाहिए। अच्छा, ब्रैकेट में भी 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ब्रैकेट भी 3 टाइप का आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट देखने को मिलेगा, छोटा ब्रैकेट, आपको फिर कर्ली ब्रैकेट देखने को मिलेगा, और फिर आपको एक बड़ा ब्रैकेट देखने को मिलेगा। तो मैंने जो सीक्वेंस लिखा उसी सीक्वेंस में सोल्व होगा। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा? छोटा, फिर कौन सा होगा? कर्ली, और फिर कौन सा होगा? बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी आपको 3 टाइप की वेराइटी देखने को मिलेगी, ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक बार लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करवा देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन है, बाकी मेथड मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से आपको करना है। चलो ये लिख लीजिए, मैं थोड़ा आपको एक परसेंटेज का नॉलेज भी दे देता हूँ, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, आपका बीच में एक लेक्चर लेता रहूंगा, ठीक है। मैंने सर से भी बात की है कि एक दिन मेरे को ऐसा दे दीजिए जहाँ पे मैं आपसे इंटरेक्शन कर सकूँ और आपको ये चीजें बता सकूँ, ठीक है। तो एक लेक्चर में मैथ्स, रीजनिंग, अल्टरनेट लेता रहूंगा। रीजनिंग में क्या चैप्टर है, मैथ्स में क्या चैप्टर है, ठीक है। एक आज मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। एक मैं थोड़ा परसेंटेज का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, परसेंटेज क्या होता है। बाकी ट्रिकों की तो भरमार है, आप बोलोगे वो ट्रिक निकाल के दूंगा, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करनी है, चाहे कैलेंडर हो या क्लॉक हो या रैंकिंग ऑर्डर हो या फिर परसेंटेज हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो भी चैप्टर होगा, ठीक है। ये आपका बेस है। अगर आपको अर्थमेटिक करना है तो ये आपका बेस है। आप अगर इसको समझ गए अच्छे से तो आपका 70 to 80% सिलेबस तो यूं ही कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इसका यूज करना सीख गए तो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर मैं वॉल्यूम और स्क्वायर की एरिया की बात करूं तो आपको उसमें भी आपको परसेंटेज देखने को मिलता है कि इतने परसेंट इंक्रीज किया उसका वॉल्यूम या उसकी लेंथ इंक्रीज की है, ठीक है। तो ये ऐसा बोल सकता हूं कि एक बेस है। जैसे आपने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम करेंगे तो उसमें भी आपको ये परसेंटेज की वैल्यू देखने को मिलेगी कि कोई व्यक्ति है, किसी की स्पीड 20% इंक्रीज कर दी तो कितने टाइम में पहुंचेगा, 20% डिक्रीज कर दिया तो क्या टाइम लगेगा। तो सब जगह आपको ये बेस देखने को मिलेगा जो इसको यूज करने आता होगा। इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि सर परसेंटेज कहते किसको है? तो कोई भी चीज अगर आप 100 में से काउंट कर रहे हो वो आपका परसेंटेज होता है। बेस क्या होना चाहिए? 100। जैसे कोई लड़का है वो 100 में से 60 मार्क्स लेकर आ रहा है तो उसी को आप बोलते हो ना 60% है। तो जो चीज 100 में से काउंट करने में आएगी उसी को बोला जाता है परसेंटेज। परसेंटेज का एक सिंबल होता है और इसी को जब आप लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है? 1/100। 1/100 का मतलब अगर मैं 1% लिख रहा हूं तो 1% को जब आप इस परसेंटेज को सॉल्व करोगे तो नीचे क्या आएगा? 1/100, नीचे 100 आएगा। बेसिक चीजें ये आपको पता है, ठीक है। ये बेसिक चीज है। मैं 50% को ये लिख सकता हूं,
लिखना हो तो कोई मुझ पे आके कोई हमला तो नहीं करेगा कि ये क्यों लिखा है 1/2। इसको लिख सकता हूँ कैसे, क्योंकि सर आप बोल रहे हो कि 50 है और परसेंटेज कितना है 100, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अल्टर लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा 1/2। तो मैंने डायरेक्टली 1/2 लिखा है ना। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे 25% दिया है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/4, क्योंकि 25/100 होगा और इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 1/4 आएगा। तो आप ये देख रहे हो ना सर, आपने 50% को 1/2 लिखा, आपने 25% को 1/4 लिखा, आप 20% को लिखोगे 1/5। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूं, मैं इनकी क्या लिख रहा हूं फ्रैक्शन वैल्यू। अगर कोई आके मुझे पूछता है कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो मेरा आंसर होगा, कोई आगे मुझे पूछता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 1/5। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, थोड़ा ये समझा दो, अपूर्णांक किसको बोला जाता है। तो ऐसी सभी वैल्यू जिनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकूं, इट इज रिटन बाय इन फॉर्म ऑफ p/q एंड अल्टीमेट क्या होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी सभी वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जिनको बोला जाता है फ्रैक्शन वैल्यू या अपूर्णांक। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा 1/2, तो p/q, तो जो सभी नंबर है जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। तो मैं 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 लिख सकता हूँ, 20% 1/5 है मेरे पास। लेकिन जब मैं आपको पूछूं ना कि सर 16.66% किसके बराबर होता है, तो यहां पे आपको थोड़ी पीड़ा होगी कि इसको कैसे चेंज करें, थोड़ी तकलीफ होगी, अभी तकलीफ होगी, लेकिन अगर मैं इसको इस वे में लिख लेता ना तो कोई तकलीफ नहीं। 2/3 का मतलब क्या होता है 0.66, तो मैंने 0.66 को क्या लिख दिया 2/3। अब जब मुझे इसको फ्रैक्शन वैल्यू में सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि 3 × 16 कितना होता है 48, 48 + 2 क्या होगा 50, और 50/3, और ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100। ठीक है ना, 63 × 48, 48 और 2 50, 50/3 होना चाहिए, और परसेंटेज हटाओ तो नीचे 100 आना चाहिए। सर ये 15 1 × 1, ये 15 से 2, तो मेरे पास अल्टीमेट निकल के क्या आया रिजल्ट 1/6। तो अगर मैं 16.66% को 1/6 लिख दूं तो सही है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। एक और एग्जांपल, अगर मुझे कोई बोलता है कि सर 33.33% किसके बराबर होता है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं 33 1/3। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो 99 + 1 100, 100/3, और परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 से 100 कैंसल, तो रिजल्ट क्या निकल के आया मेरे पास 1/। तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जो फिक्स अमाउंट में होती है वो आपको याद करनी है। कहां से आती है वो मैंने आपको बताया कि अगर 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू में कोई क्वेश्चन में 1/6 लिख रहा हूं, तो ये मत पूछना कि सर ये 1/6 कहां से आया, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको यहां बता चुका हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा 1/6। मैं अगर 33.33% को 1/3 लिख रहा हूं, तो इसका रीजन ये रहा कि क्यों होता है। तो कुछ मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा रहा हूं, वो लिख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। फिर क्वेश्चन की बात करता हूं। 100% 1 के बराबर, 50% 1/2 के बराबर, 33% 1/3 के बराबर, 25% 1/4 के बराबर, 20% 1/5 के बराबर, 16.66, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों में से जो लिखा होगा इज इक्वल टू 1/6 के बराबर, 14.28%, या फिर 14 2/7% इज इक्वल टू 1/7, 12.5%, 12.5% इज इक्वल टू 1/8, 11.11% इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको लिखाई है, तो ये आप याद कर सकते हो।
इसका यूज कहाँ आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से यूज करना है वो भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते इसके बेस ऊपर, और जो भी फिर डाउट होगा तो अपने डिस्कस कर लेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला ना कि स्क्वायर याद कर लो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्यूब याद कर लो, आपको बोल रहा हूँ कि टेबल याद कर लो, तो एक चीज और एडिट कर लो उसके अंदर कि सर ये भी याद कर लो। ठीक है, ये याद होगी तो आप सॉल्व कर पाओगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन सबको मैं देता हूँ, जिसको मैथ्स आती भी है और जो आर्ट्स से भी हो कॉमर्स से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो कि कोई संख्या x है, x में मैं 20% का इंक्रीज करता हूं, x में मैं 20% का इंक्रीज करता हूं और ये नंबर इंक्रीज होने के बाद बन जाता है 216। तो मैं आपसे पूछूं कि इस x की वैल्यू क्या होगी, तो मे भी आप सभी इसको आराम से फाइंड कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर ये x का x, जब आप 20% इंक्रीज करते हो तो आपको 100 में प्लस करना होता है, 120% बनेगा। जब आप 20% डिक्रीज करते हो तो 80% बनेगा, क्योंकि 100 में से 20 माइनस होगा। तो x नंबर था, x का अगर 120% में निकाल दूं तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 16 के बराबर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, बेसिक सा है कि सर इंक्रीज कर रहे हो इसलिए आपने 100 में प्लस किया है। अगर डिक्रीज होता तो 80/100 लिखता, नंबर का 80% हो जाता वो। अच्छा, यहां से 1 0 से 1 0, ये 2 से कैंसिल कर देता हूं 6 टाइम, ये 2 से कैंसिल कर देता हूं 5 टाइम। आप जब इसको 6 से कैंसिल करोगे तो आपको क्यूब याद है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये 6 का क्यूब होता है। तो 6 से कितने टाइम चला जाएगा, ये 36 टाइम चला जाएगा। और जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 36 × 5 आपको करना होगा, और ये आपके पास निकल के आ जाएगा तो x मेरे पास क्या निकल के आया 180। कोई नंबर था x में मैं 20% इंक्रीज कर रहा था, नंबर बन गया 216। तो मुझे x की वैल्यू पूछी थी, तो बेसिक सा मैंने कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व किया। ठीक है, ऐसा एक और एग्जांपल दे दूं तो भी आप कर लोगे कि मान लो कि सर कोई नंबर है x में 10% का इंक्रीज हो रहा है, अब ये नंबर बन रहा है 1331। तो अब क्या करोगे आप, सर x है 10% का इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 110/100। 100 में 10 ऐड करोगे तो 110, और परसेंटेज है तो 100। ये किसके बराबर, सर 10 से 10, और अगर 11 का क्यूब याद है तो ये 11 के क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, और 121 × 10 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1210। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लोगे, मुझे विश्वास है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसमें चेंज कर देता, कोई नंबर है x में इंक्रीमेंट हो रहा है 16.66% का इंक्रीमेंट, मतलब ये साइन यूज कर लेता हूं, और अब नंबर आपका जो बन रहा है वो 343 हो रहा है। तो अब आप x निकालिए, तो आप नहीं सोल्व कर पाओगे, मुझे पता है। यहाँ आपको कैलसी की जरूरत पड़ेगी अगर सॉल्व भी करना होगा तो। क्यों, आप क्या करोगे कि सर नंबर था x में 16.66% का अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ये नंबर आपका हो जाएगा 116.66% और डिवाइड बाय 100, और ये किसके बराबर होना चाहिए 343 के बराबर। और करते रहो रात दिन, इसको काटते रहो, कट जाए तो ठीक है, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, कट जाए तो अच्छा है, मुझे भी बता देना किससे काटा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आके आप फंस गए। आपको बेसिक तो पता था कि यही करना है, लेकिन यहाँ पे आके अटक गए कि इस कैलकुलेशन को कैसे मैं इसका सॉल्यूशन करूं। मैं यहाँ पे आके अब क्या करूं, तो यहाँ पे आके आपको एक चीज करनी थी जो मैंने आपको बताई है कि सर फ्रैक्शन वैल्यू, कोई नंबर था x में इंक्रीमेंट कितना हुआ 6.66% का, और नंबर कितना बन गया था 340। ठीक है, जिस तरीके से अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख, आपका भी लक्ष्य होना चाहिए। परसेंटेज में कुछ भी वैल्यू दे रखी हो ना, तो मुझे क्वेश्चन क्या दिया उसको भूल जाओ, कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व होगा। पहले देखो कि परसेंटेज क्या दे रखा है। तो जैसे मेरे को दे रखा था 16.66%,
मेरा फोकस यही होगा कि पहले तो इसको पकड़ के फ्रैक्शन वैल्यू में लेके आओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो मैंने लिखा है कि आपको 16.66% किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर। चीजों का समझना सभी जगह काम आएगी, चाहे प्रॉफिट हो रहा होगा, चाहे लॉस हो रहा होगा, चाहे इंटरेस्ट निकालना होगा, या टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे, सभी जगह ये चीज अगर समझ में आई तो। क्योंकि वहां आपको बोला होता है कि ए की एफिशिएंसी बी से इतने % ज्यादा है, बी की एफिशिएंसी ए से इतने % कम है, तो आपको इसका पहले काम क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में उठा के लेके आना है। ठीक है, दो चीज समझना, ये जो डिनोमिनेटर नंबर होता है ना, ये आपका ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, मतलब मैं इसी के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ डिनोमिनेटर के। अगर मान लीजिए कि मैंने 33.33% लिखा होता, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/3, तो मेरा ओरिजिनल नंबर इस बार क्या बन जाता। मतलब जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होगी उसके जो डिनोमिनेटर में होगा, जिसको गुजराती में छेद बोलते हैं, ठीक है, वो मेरा क्या बन जाएगा, तो वो मेरा ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। मतलब मुझे इसी के रिस्पेक्ट में बात करनी है, बाकी मुझे कोई बात नहीं करनी है, इसी के रिस्पेक्ट में मुझे बात करनी है। ठीक है, दो चीज ध्यान रखना, अगर मैं इंक्रीमेंट बोल रहा हूं, ठीक है, नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपको क्या करना है, प्लस। और अगर मैं बोल रहा हूं कि डिक्रीमेंट हो रहा है तो क्या करना है, नंबर या तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर लो, डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस कर रहा हूं। समझना, इसी को मैं पकड़ के फिर से लेकर आता हूं। मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करोगे, मुझे लॉस हो रहा है तो क्या करोगे, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या करोगे, प्लस। ऐसा मत बोलना कि इंटरेस्ट मिल रहा है तो सर माइनस कर लो, ठीक है ना, प्लस हो गया, मिलेगा इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या कर दो, प्लस। ये आपका चैप्टर हो गया सीआई और एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका चैप्टर हो गया प्रॉफिट और लॉस या डिस्काउंट। डिस्काउंट होगा तो क्या करोगे, माइनस, क्योंकि डिस्काउंट होगा तो माइनस करके लोगे। तो ये एक चैप्टर हो गया आपका प्रॉफिट लॉस। एक चैप्टर में यहाँ पे आपको परसेंटेज समझा ही रहा हूं, ठीक है। एक चैप्टर टाइम एंड वर्क भी आ जाएगा, आपकी एफिशिएंसी अगर डालनी होगी तो इसको। एक चैप्टर हो जाएगा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, आपकी स्पीड 20% इंक्रीज हो रही है, 16.66% इंक्रीज हो रही है। तो मैंने क्या बोला कि ये आपका बेस है, अगर इसको समझ गए तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो मैंने बोला इंक्रीमेंट हो रहा हो तो प्लस कर लो, डिक्रीमेंट हो रहा हो तो माइनस कर लो, ठीक है, इतनी सी चीज। तो इस क्वेश्चन में अगर आप अर्जुन की तरह देखते तो आपको पहली चीज दिखती परसेंटेज, और दूसरी चीज उसके पास में दिखती कि क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो आपको इस 6 में जो भी ऊपर नंबर दे रखा है उसको इंक्रीमेंट होगा तो प्लस करना है और डिक्रीमेंट होगा तो माइनस करना है। तो आप बताइए, जब आप 6 में 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 6 में अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो कितना बनेगा, 7। क्लियर हो यहां तक चीजें। क्योंकि सर प्लस क्यों किया है, क्योंकि इंक्रीमेंट बोला है। अगर मुझे डिक्रीमेंट बोला होता तो डिक्रीमेंट में क्या किया होता, तो 6 में से 1 चला जाता तो 5 लिखता। कितना लिखता, 5। तो इंक्रीमेंट बोला होगा तो प्लस करना है, डिक्रीमेंट बोला हो तो माइनस करना है। तो मेरा नंबर था 6 और 6 से कितना हो गया, 7। ये मेरा ओल्ड नंबर था या ओरिजिनल नंबर था, मैंने पहले ही बोला है, जो डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज आपका ओल्ड नंबर होगा, और ये मेरा न्यू नंबर बन गया। समझना, क्वेश्चन को छोड़ दो अभी। मैंने बोला कि 16.66% का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 16.66% इज इक्वल टू 1/6। और सर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस कर दो, तो 6 में 1 ऐड करोगे तो 7। तो मेरा ओरिजिनल नंबर था 6 और नया नंबर बना क्या, 7। पर सर एक प्रॉब्लम है, आप पेपर सेटर की बात नहीं मान रहे। क्यों, क्योंकि पेपर सेटर तो आपको बोल रहा है कि नया नंबर क्या बन रहा है, 343, और आप अबकी चला रहे हो कि आप बोल रहे हो नया नंबर 7 बन रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि 7 बन रहा है मेरा नंबर, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है आपको कि नंबर कितना बन रहा है, 343। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है एग्जामिनर बोल रहा है कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसा बोल देता हूं कि मेरे 7 पार्ट एग्जामिनर के 343 के बराबर है। मेरा तो 7 आ रहा था, एग्जामिनर का 343 आ रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे 7 भाग
किसके बराबर है, तो 343 के बराबर। अगर मेरे 7 भाग 343 के बराबर हो गए तो मेरा एक पार्ट किसके बराबर आएगा, 49 के बराबर आएगा। 7 से इसको कैंसिल करूंगा तो यस या नो। 7 भाग, अगर मेरे 7 भाग 343 के बराबर है तो मेरा एक भाग किसके बराबर होगा, 49 के बराबर। सर आपको क्या निकालना था, ओरिजिनल नंबर। आपका ओरिजिनल नंबर कितना है, 6। जब आपका एक भाग 49 के बराबर है तो आपका 6 पार्ट किसके बराबर होना चाहिए, तो सर 6 इंटू 49, और यहां से आपका 1 सेकंड के अंदर जवाब आ जाता है 290। अब यहां पे मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ना मुझे कैलसी का यूज करना पड़ा, ना मुझे पॉइंट में संख्या आती वो भी नहीं करनी पड़ी, और मैं बता सकता हूं कि 294 मेरा वैलिड आंसर है। चीजें समझ रहे हो। एग्जामिनर में जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू में घुमाएगा ना तो आप वहां फंस जाओगे, जो अगर आप बेसिक पकड़ के चलोगे तो। लेकिन आपको मेथड के साथ उसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी पता है तो आप उसको हिट कर सकते हो, भले कोई भी क्वेश्चन होगा। क्योंकि सर मेरा नंबर 6 था, 6 में एक ऐड किया 7 बन गया। मेरा तो बनना था 7, क्वेश्चन बोल रहा है 343, तो मेरे 7 पार्ट्स 343 के बराबर, मेरा 1 पार्ट्स 49 के बराबर। अगर आपका 1 पार्ट 49 के बराबर होगा तो 6 पार्ट किसके बराबर होगा, 294 के बराबर। तो ये आपके थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दिया कि किस तरीके से मैथमेटिक्स में अपने आगे जाएंगे। इसी तरीके से मैं रीजनिंग में भी आपको आगे लेके जाऊंगा। मैंने ऐसा भी बताया आपको लास्ट टाइम कि आप मुझे रीजनिंग में भी कोई भी चैप्टर बोलोगे उसकी भी मेरे पास मेथड होगा और ट्रिक भी होगी, जहां जहां वैलिड होगी वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलेंगे। थैंक यू।